أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ جی الحمد للہ. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا لیسن نمبر جو چل رہا ہے وہ 7 ہے اور ایکسرسائز نمبر آج ہم نے کرنی ہے 19 میرے پاس کھلی ہوئی. ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں. 18 ہے یہ کہہ رہے ہیں 19 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جا اور سارا کو نا یہ کیا ہے ماضی ہے. جا آ کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ جیم یا حمزہ. حمزہ. جیم واو یا جیم نہیں واو. نہیں نہیں اچھا جیم یا حمزہ. جیم واو حمزہ کچھ بنتا نہیں ہے نا. جوا آ تو نہیں ہوگا نا. جا یا آ ہوگا. ماضی کیا ہوگا؟ جا یا آ. جا یا بھی بیچ میں ہے آپ کا اور حمزہ بھی ہے. یہ روٹ ورڈ ہے یہ ماضی ہے. اب حرف علت سے پہلے زبر ہے تو یہ آپ کا الف میں چینج ہو کے جا آ بن گیا. تو یہ جا آ جو ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے. حامدن کیا ہوگا؟ حامدن با. یہ با یا حمزہ ہے نا. با یا حمزہ. با یا آ. بابا آ تو نہیں ہوگا نا. با یا آ ہوگا. حرف علت جو ہوتے ہیں اجوف میں بو اور یا اجوف میں یوز ہوتے ہیں نا. تو اوپر ہم نے وا بھی پڑھ لیا اب یا ہی پڑھ رہے ہیں. یہاں سے یا ہی اسٹارٹ ہوئے. تو با یا آ جو ہے یہ جب یا پر زبر ہے اور پیچھے بھی زبر ہے تو یہ الف میں چینج ہو کے با آ بن گیا. یہ امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ سبق اس حساب سے جو آپ کے فعل معطل ہے نا اس کے حساب سے. یہ سبق اس سبق کا نام 7 ہے اور یہ بک کے آخری سبق ابھی تک 112 پہ جانا ہے ہم نے. ایک سیٹ نمبر ہے اس کا پیج کا. تو بہت کچھ اس بک میں ابھی سیکھنا ہے ہم نے. کس کے بارے میں؟ فعل معطل کے بارے میں. فعل معطل کیا ہوتا ہے؟ جس کے حروف علت میں جس کے حروف اصلی سمجھتے ہیں کیا ہے روٹ ورڈ میں. وہ حروف اصلی ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کی. اصل کا مطلب ہوتا ہے روٹ. اصل جو ہوتی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے روٹ. وہ روٹ جو ہے نا وہ 3 لیٹر ہوتے ہیں کسی بھی اسم کے کسی بھی فعل کے. روٹ لیٹر 3 ہوتے ہیں. اس سے وہ لفظ بنتا ہے. اور اگر روٹ ورڈ جو ہے نا وہ سارے کے سارے ہیلدی لیٹر ہوں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل صحیح ہے نا. صحیح کہلاتا ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی ایک بھی حرف علت آ جائے تو وہ معطل بن جاتا ہے. علت والا اس میں بیماری آ جاتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. معطل کا مطلب ہے علت والا. علت کا مطلب ہوتا ہے بیماری. تو بیماری پھر اس کا علاج کرنا ہوتا ہے. اب جیسے بیا آیا تھا تو ہم نے اس کا علاج کیا. یا سے پہلے زبر دیکھی تو ہم نے اس کو الف میں چینج کیا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جا یا آ یعنی جا آ کو آپ نے اسی طرح بنانا ہے. جا آ پہلے بنا لیں جا یا آ سے اور پھر اس طرح حامد جا آ. ٹھیک ہے. آمنت جا ات انت جیتا. اب جیتا کیسے بنے گا؟ یہ کون سا سیگا ہے؟ جیتا والا یہ 7واں سیگا ہے. آپ کو پتا ہونا 7واں سیگا ہے اور یہ 10واں سیگا ہے. یہاں پہ دو ہی بتائے ہیں. واحد بتایا اب جمع بتایا. مڈل والے نہیں بتائے. اگر مڈل والوں کو شامل کریں تو یہ 7واں ہے. اگر یہاں سے کریں تو یہ 5واں ہے. لیکن ہم اسی طریقے سے چلیں گے. یہ انتا ضمیر والا 7واں ہے. یہ 10واں ہے اور یہ کون سا 13واں ہے اور یہ 14واں ہے. صحیح ہے نا. یہ تو اب آپ کو پتا ہے. تو اب آپ کا کیا ہو گیا یہاں پہ؟ پہلے تو ہم دیکھیں گے با ات کیسے بنا نا. با ات با آ سے با ات کیسے بن گیا. تو جب با ات بن گیا تو آگے تا لگا کے اس پہ سکون ڈال دینا تو با ات بن جائے گا. جا آ بن گیا تو تا لگا کے سکون ڈال دیں جا ات بن گیا. اب جیتا کو دیکھ لیتے ہیں. جیتا کیسے بنا ہے؟ 7واں سیگا. 7واں سیگا جو ہوتا ہے اس سے پہلے یہاں پہ چینجنگ آتی ہے.
बिना कैसे बना, अगर बिना बन जाए हमारा तो फिर हमारे ये हम्म सारे आराम से बन जाएंगे। आगे हमने बेता, हम्म बेतुम, बेती, बेतुन्ना और बेतु, बेतना करते हैं। ठीक है, तो बेना को हम्म बनाते हैं पहले। ठीक है, ये पिछले क्लास का रिवीजन हो रहा है अभी तक। तो बेना क्या है, इस यहाँ पर क्या होता है, कौन सा सीगा होता है? ये बाप पहले देखें, ये पहले बाप देखें कौन सा है, फिर उस हिसाब से बनाइएगा। हुन्ना हुन्ना का हुन्ना। बाप दरबा है। बाप दराबा, जा या आ या जी उ, बाप दराबा है। ठीक है, अब दराबा से हमने ये बनाना है, तो दराबा में माजी में क्या आता है, फालना आता है ना। माजी में तो क्या आएगा, फालना ही आएगा। ठीक है ना, हम्म मुजारे में यफअलना आएगा। हम्म फालना, माजी में फालना आएगा, मुजारे में यफइलना आएगा। हम्म ठीक है, हम्म समझ आई, मुजारे में यफइलना, यफअलना क्यों नहीं आएगा, अगर यफअलना रखेंगे तो वो बाप फतह बन जाएगा, वो बाप समिया बन जाएगा। यफअलना हम्म रखेंगे तो हमें ये फअलना माजी है, हमने मुजारे में यफइलना रखना है, तब हमारा मुजारे वाला सीगा बनेगा। अब बहरहाल अभी तो हम माजी बना रहे हैं ना, तो इसमें आप अपनी डालें तो ये क्या बन जाएगा, बा या ऐन। बा या या पे भी जबर, बा पे भी जबर। लाम कलमा हमारा क्या है, ऐन है। तो बा या अन्ना हो गया। सही है, अब क्या करेंगे, हरफिलत को देखेंगे, हरफिलत पे जबर आ रही है, बीमारी है दूर करनी है ना, तो हरफिलत को ही पकड़ेंगे ना, बीमारी को पकड़ेंगे ना जाके, कि हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। ये तो हेल्दी है ना, इनको तो कुछ नहीं करना, इसको पकड़ेंगे बीमार को। अब बीमार को पकड़ा, उसको उसको देखा कैसे इलाज हो सकता है, तो उससे पहले जबर आ रही है, तो उसको हमने अलिफ में चेंज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा। सही है, क्या बनेगा ये, या से पहले जबर है, उसको अलिफ में चेंज कर दिया तो बा बन गया। उसके बाद आपका ये बन गया, ऐन बन गया और ना बन गया, बा ना। अब हाँ, अब देखें ये साकिन है, ये भी साकिन है, तो गिराएंगे किसको, जिसको हमने चेंज किया है, जो हम्म कमजोर लेटर था, उसी को हम अभी बीमारी को खत्म करेंगे जड़ से, और ये बाना बन जाएगा। अब बाना तो नहीं बनाना हमें, तो बे ना बनाना है ना, तो सिर्फ बाप करुमा और बाप नसरा में क्या होता है, पेश आती है यहाँ पे, इस पे कुलना, है ना, तो पेश आएगी, बाकी सब में जेर आएगी, तो ये बे ना बन जाएगा। सही है, बाकी जबर को जेर में चेंज करें और बेना बनाएं, तो यहाँ पे बेना बन गया आपका। फिर अभी जमीरें लगा लें आगे। तो ये तो मैंने अंदर की कहानी बता दी। ये तो सिर्फ कह रहे हैं कि बा आ जो है, उस इसको आपने इस पूरे गर्दान में डालना है। कौन पढ़ेगा, हामिदुन। पहले जा को ले लेते हैं, बा तो जो हमने करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम जा को ले लेते हैं, शाह को भी ले सकते हैं, जितने भी इस तरह के हरफ आते हैं ना, फेल आते हैं, उनको ले सकते हैं। तो बा आ है यहाँ पे, हामिदुन जा आ। आपदा बनाए आगे, जा आ, ये वाला बनाए। कौन सा? मैंने ओ आ, उसको क्या छोड़ दे, बनाना? आमन कहाँ से आ गया, कोई और आमिनतु पढ़े यार, लास्ट में रिकॉर्डिंग खराब आमिनतु हो रही है सुबह सुबह। सॉरी। आ जाए कोई और पढ़े, ये सो रही है अभी मेरी तरह, हमारा भी मैम सोने का। आमीनत हाँ, आप जाअत बताइए, करेंगे। आमिना तू क्या बन जाएगा, बल्कि यहाँ से आप आमीनत शुरू करें, हामिदुन बा आ, और यहाँ पे जमा पे आ जाए। हामिद की जमा अर्रिजालू होगी, अर्रिजालू क्या बनेगा, जाऊ। जाऊ बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आमीनतु जाअत। 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 यहाँ पे क्या है, निसाउ जना। जीना, जीना, जीना। इसको जेर को बारीक जितना कर सकते हैं ना, जीना, जे ना नहीं बोलते, वो थोड़ा मजहूल तरीका होता है, थोड़ा सा बारीक करें, और जीना। और आगे क्या होगा, अंता जिअता। जीता, ऐन भी निकालनी है, जीता। आगे क्या है, अंतुम, अंतुम जिअतुम। जी, जी तुम। हम लोग थोड़ा सा, पता नहीं आप लोग क्यों इस तरह पढ़े हैं, ये तो पाकिस्तानियों का तरीका होता है।
बहरहाल आगे क्या है? अंता, अंती, अंती जिअती, जिती, हम्म, अंतुन्ना जिअतुन्ना, हम्म, अना जिअतु, हम्म, नहनु जिअना। बिन। अच्छा, अब ये सारा समझ में आ गया कैसे मैंने जा आ में चेंजिंग आई। और उसके बाद क्या होता है जब यहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा, दो आदमी आए तो उसके लिए अलिफ लगाना पड़ेगा ना, ये जमीर है, इसमें हुआ नहीं, जा जमीर है। पे मद जो आती है, जा पे जिस ये जो मद आती है, तो इस मद का मतलब क्या होता है? ये मत जो आती है ना, जब भी उरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाता है ना, उसी लफ्ज में या अगले लफ्ज में हमजा आ जाए, अगले लफ्ज में भी आ सकता है नहीं, ना। मुझे सिर्फ तजवीज के रूल के हिसाब से नहीं पूछ रही हूँ मैं, जैसे ग्रामर में इसका क्या मतलब होगा? तजवीज का ग्रामर में रूल कोई तो मुझे मतलब नहीं है पता वो। है। मुझे लिखने की आदत है, इस तरह मत लिखने की तो मैं डालती हूँ, मुझे लफ्ज खूबसूरत नहीं लगता, मसलन मैं अगर ये नहीं नहीं, डालती। ये कुरान में भी आता है ना, जिससे इस तरह से लिखा हुआ आता है। हाँ तो आता है ना, तो वो क्यों आता है? ताकि आप उसको सही पढ़े, उसको लंबा करें। ग्रामर के हिसाब से इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। ये तो खूबसूरत लफ्ज की खूबसूरती के लिए भी है और तजवीज का रूल भी है। ठीक है, जब भी आपके रूफे मद आएंगे, वाव आएगी, या आएगी, अलिफ आएगा, उसके आगे हमजा आएगा, तो उस पर उन पे मद आ जाएगी। और उस मद को आपने कितना पढ़ना होता है? 4 से 6 अरका, जितना भी आप लंबा कर नहीं सके। नहीं, मद्दे मुत्तसिल है, इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। वो तजवीद का रूल है, वो आपको पता है तो फिर आप उसमें, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि उस तरीके से पढ़ना है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ेंगी ना तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये हम कोई कुरान नहीं पढ़ रहे। सही है, नंबर एक। लेकिन अगर कुरान पढ़ें तो फिर आपको प्रॉपर उसको 3 से 4, जैसे आप कह रही हैं, हरकत लंबा करना होता है। ये कौन सी मद बनती है? बड़ी वाली बनती है या ये छोटी वाली बनती है? मद्दे मुत्तसिल है मैम, ये हमजा मुत्तसिल। उसी कलमे में है। जी। हाँ, तो ये मुत्तसिल नहीं है। नहीं, जिस जिस जैसे लफ्ज के अंदर हमजा हो हरूफ मद्दा के बाद, उसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। तो वो जा के वो हाँ, बाद वो तो हमजा आया मद्दे ना। मुत्तसिल है, अगर दूसरे लफ्ज में आ जाएगी तो मद्दे मुनफसिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जी उसको जी। चार, उसको उसमें बड़ी मत डालनी है या छोटी डालनी है, ये वाली? नहीं, मद तो मैम ये ऐसी रहेगी, मैम बस जो इसको मुत्तसिल पढ़ने होती है ना, जो लिखने का रूल मुत्तसिल में होती कमी है, ज्यादा होती उस है। पे हम्म, मद्दे लाजिम ही आती है, उस पर बड़ी मद्दे मत आती लाजिम है। आती है। हाँ तो हाँ जी जी, एक, बड़ी मद लाजिम की होती है, तूल दे के पढ़ते हैं इसको, तूल में हाँ दोनों तो को तूल देकर पढ़ते हैं। लेकिन वो 4 सेकंड तक पढ़ी जाती है जो मद्दे मुनफसिल होती है, और जो मद्दे मुत्तसिल होती है वो 5 सेकंड तक पढ़ी जाती है। और उसी को मद्दे लाजिम करके ना, जैसे वो मद्दे लाजिम लिखते हैं, मद्दे मुनफसिल को भी वैसे ही लिखा जाता है। चले, ये यानी तजवीद का रूल नोक है। नोक बनती अभी है इस मैम, बहस को उसकी हम नोक यहीं पे बनती खत्म, है। इसी बहस को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। मद्दे मुत्तसिल वो होती है हमजा उसी लफ्ज में आ जाए, मद्दे मुनफसिल तो हमजा अगले लफ्ज में आ जाए। अब उस पे कौन सी आती है? छोटी मत डालेंगे या बड़ी? मैंने तो बड़ी देखी है, ठीक है, बड़ी मत देखी है। और बड़ी मत जो होती है वो लाजिम होती है, उसको 5 to 6 का पढ़ा जाता है। 4 to 6 भी कर देंगे ना तो वो भी सही है। लेकिन आप 3 to 4 ऐसे नहीं कर सकते। मुझे अब नहीं पता, वल्लाह आलम में, मुझे तो पता है, मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद छोटी मत जो होती है वो कब आती है? छोटी भी तो आती है ना, और एक बड़ी भी आती है। आती दोनों, मुझे ये पता है कि दोनों हुरूफ मद्दा के बाद ये आती है। सही है ना। इसको कम पढ़ा जाता है 3 से 4। इसको मुझे पता है कि ये आपकी 4 के बाद ही पढ़नी चाहिए, 5 या 6 पढ़नी चाहिए, बड़ी वाली। सही है। दोनों मुनफसिल भी हो सकती हैं, दोनों मुत्तसिल भी हो सकती हैं। अब कुरान में ये चीज देखिएगा कैसे आ रही है और कैसे पढ़ना। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे यार गर्दान समझ आ गई। अब सारा से करेंगे। सारा का रूट वर्ड क्या है? सारा का रूट वर्ड क्या है? तीन अलिफ वाव बार हम वो पढ़ रहे हैं ना, आज वो यही पढ़ रहे हैं। यानी याद रखें, अलिफ कभी भी रूट वर्ड नहीं होता। तीन आपने बताया है। कभी भी नहीं होता। भूल जाएं कि अलिफ रूट वर्ड होगा। ये हरफे इल्लत से बदल के आता है पढ़ने के लिए, आसानी के लिए। अगर सयारा पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा, तो हम क्या कर देते हैं? हरफे इल्लत पे जबर, पीछे जबर, जबर, सारा बना देते हैं। अब सारा जबर बन हो गया। तो अलिफ लगा। हाँ, तो ये अजवफ याई है। दाल ऐन वो, दाल ऐन वो, ये तो नाकिस बन जाता है।
اس میں کوئی مڈل میں والا کوئی حرف بتائے مجھے جس میں مڈل میں وہ آتی ہو یا یا آتی ہو. شاء ہاں تو آپ نے کیا بولا مجھے سمجھ نہیں آئی. جیم واو با. ہاں جواب ٹھیک ہے نا. جیم با با. اب یہ کیا ہے؟ یہ اجوف ہے. اور اگر اسی کو یا کر دیں تو یہ اجوف یائی ہو جائے، اجوف یائی ہو جائے گا. یہاں پہ ہم نے کر دیا یا تو یہ اجوف یائی ہو گیا. دونوں ہیں اجوفی کیونکہ دونوں درمیان میں آ رہے ہیں یہ بھی. اب اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ جواب با ہوتا ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اس سے پہلے زبر ہے تو جابا کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ آتا نہیں ہے اس طرح، جابا کبھی بھی آتا نہیں ہے. میں مثال یہ دے تو رہی ہوں. پڑھنے کے لائق نہیں ہے زیادہ. نہیں نہیں، پڑھنے کے لائق کی بات نہیں ہے، یوز ہی نہیں ہوتا یہ لفظ جابا. اجابا یوز ہوتا ہے. اجوبا یعنی یجوب مینس اس کا میننگ باب یہ ہے فعال جابا سے، کا. باب فعال سے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی تو مزید فی سے بھی آتی ہے نا اجوب پر جائے تو جی اجوبا. تو اب کیا کریں گے؟ حرف علت اس میں دوسرا طریقہ استعمال ہوگا. اس میں یہ والا نہیں ہوگا کہ حرف علت متحرک تو پیچھے متحرک تو الف میں چینج کر دو. یہاں پہ حرف علت متحرک تو ہے لیکن پیچھے ساکن ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے اور یہ اس کو سکون دیں گے. بیمار علاج تو کرنا ہے نا. اب واو سے پہلے کھڑی زبر آ گئی تو یہ کیا بن جائے گا؟ اجابا بن جائے گا. اس کو الف میں چینج کیا تو اجابا بن. تو الف کا صرف یہی کام ہے کہ وہ بدل کے آتا ہے، وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا. ہاں حمزہ ضرور اس روٹ ورڈ کا حصہ ہوتا ہے. حمزہ، حمزہ اگر آئے روٹ ورڈ میں تو اتنی چینجنگ بھی نہیں ہوتی جتنی واو اور یا آتے ہیں. تو اب یہ سایرہ سے سارا بن گیا. اب حامدن سارا. اور یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ الرجالو شناس. یہاں کیا آئے گا؟ جی میم. سارا سارو ہو جائے گا نا. ہاں سارو ایک جی. دفعہ آپ نے بنا لیا نا سارا. اب سارو ہو گیا. سارت کر لیں، آگے تا سکون والی لگا دیں. النساء. اب کیا آئے گا؟ سرنا. اور سرنا سرنا. بنانے کا بالکل وہی طریقہ ہے. باب دربا ہے تو ماضی میں تو آپ نے کوئی نہیں، وہی فالنا کے وزن پہ آپ نے ڈالنا ہے تو آپ کا سرنا بن جائے گا. پھر سرتا بنا لیں، سرتم بنا لیں، سرتی بنا لیں، سرتمنا بنا لیں. سر تو اور سرنا. تو یہ میں نے کیسے بنانا ہے؟ فالنا کے وزن پہ. اب اس میں روٹ ورڈ ڈالے شناس. سین جی میم. یا سین یا. یا اور آگے کیا ہوگا؟ لام کلمہ کیا ہے ہمارا؟ را ہے. ٹھیک ہے نا. را. یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے. تو یہ لام کلمہ ہے، اس کے اوپر یہاں پر جو حرکت ڈلنی ہے ڈلی ہوئی ہے وہ ڈالنی ہے، یہاں والی نہیں ڈالنی. سیرنا. سیرنا سیرنا. بن جائے. سیرنا. ٹھیک ہے یہ یا ہے، اس کے اوپر زبر ہے. سیرنا بن جائے گا. اب سیرنا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سرنا کرنا ہے. تو کیا جی مسئلہ ہو رہا ہے؟ حرف علت ہے، زبر ہے، پیچھے زبر ہے تو یہ سارنا بن جائے گا. جی سارنا بنائیں گے نا. حرف علت بیماری کا علاج کرنا ہے نا، جیسے پچھلے والے میں جی کیا تھا. تو یہ حرف علت پہ زبر، پیچھے زبر، الف میں چینج کیا تو یہ ہمارا یہ را الگ ہو گیا ابھی، کیونکہ آپ پہلے تو جڑا ہوا تھا الف کی وجہ سے الگ ہو گیا. تو یہ سارنا بن جائے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ قالنا. یہ قالنا میں جو آپ کو کلنا بنتا ہے نا وہ بھی ویسے ہی بنتا ہے. بس یہ ہے کہ باب نصر میں ہم پیش دیتے ہیں اور یہاں پر ہم زیر دیں گے. ابھی ابھی دو سکون عرب لوگ پسند نہیں کرتے، پڑھنے مشکل ہوتے ہیں تو وہ اس والے کو گرا دیتے ہیں اور پھر اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں کیونکہ باب دربا ہے. سرنا بے انا کی طرح یہ سرنا بن گیا. سرتا، انتا سرتا، انتم سرتم. انتی کیا ہوگا؟ سرتی. سرتی ہو جائے گا. آگے پڑھتی جائیں تھوڑا. نہ سرتنا. انا سرتو. نحنو سرنا. ہم، تو بس آپ نے اس کے مطابق اب یہ جملہ اسمیہ بن رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور فعل جی جو ہے میم. کیا ہے؟ بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک جملہ ہے. فعلیہ خبر. ہاں جملہ فعل یا خبر بن رہا ہے. تو جب جملے کو خبر بناتے ہیں تو اس میں ایک ضمیر کو لاتے ہیں، ضمیر عائد ہے نا، کنیکٹر کو. وہ جو ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے. اگر یہ واحد مذکر ہے تو با آ لائیں گے،
वाहिद मुअन्नस है तो बाअत लाएंगे, क्योंकि इसमें हिया ज़मीर है, वो आमना के मुताबिक है। यहाँ पे अंता ज़मीर है, अंदर, ठीक है, ये मुब्तदा बन रही है ना, तो इसमें आपने फेल का वो वाला सीगा लाना है। ठीक है, अब ये फेल चूंकि बाद में आ रहा है ना, जब फेल बाद में आता है तो फिर जो होता है सीगा हम गर्दान में से उठाते हैं। इसके मुताबिक लाने के लिए हम गर्दान में से सीगा उठाते हैं। जो भी हमारी गर्दान बनेगी ना, बा बा आ बा उ, उसमें से सीगे लाएंगे, इसके मुताबिक लाना है। तो जब हमने देखा अर्रिजालु आया तो हमने जमा मुजक्कर वाला सीगा उठा लिया, क्योंकि ये जमा मुजक्कर है। जब हमने यहां से अब जमा मुन्नस देखी तो हमने छठा सीगा उठा लिया जमा मुन्नस का। क्यों उठाते हैं? ताकि अगर मैं यहाँ रिजालू के आगे बा आ लगाऊं या मैं हामिदुन के आगे बा ऊ लगा दूं तो वो गलत हो जाएगा। जी मैम, वो जमीर हाँ। मैच नहीं अच्छा, करेगी। एक तरीका तो ये हो गया कि फेल बाद में आएगा तो फिर गर्दान में से सीगा उठाएंगे। याद रखना ये जुमला मेरा। अगर फेल बाद में आ रहा है, फेल बाद में आ रहा है ना, अगर फेल शुरू में आ रहा है तो फिर क्या होगा? मैम फिर मसलन पहला पहला मसलन यही चौथा, शुरू में आ रहा है, अब क्या होगा? पहला चौथा, पहला पहला जाहिर होता है। लाएंगे हाँ, अगर इसम जाहिर है तो। हाँ। अगर पहला और चौथा सीख गया तो फाइल बाहर भी देखना है, ठीक है, कॉन्शियस रहना है। ठीक। इसमें भी देखना है और इसमें पहले और चौथे दोनों में देखना है कि फाइल बाहर तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या करना है हमने? अगर ये दोनों सीगे नहीं है तो फिर हमारा क्या होगा? वो गर्दान। हाँ, फिर गर्दान में से सीगा। तो एक मैं क्वेश्चन अब करना यहाँ पे चाह अच्छी रही तरह थी समझ ले आपसे, बात पहले को, जो नहीं मैं बात कर रही हूँ, एक सेकंड मुझे थोड़ा दीजिएगा। सा अगर पहला और थोड़ा। चौथा सीगा है तब तो आपने आगे भी देखना है, ठीक है। हम्म हम्म लेकिन हम्म बाकी 12 सीगे हैं तो आपने आगे नहीं देखना, क्योंकि उनका फाइल साथ ही लगा होता है, तो हम्म वो ही फाइल बनेगा। फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है ना। मसलन बा आ रहा है ना, हम्म बा हम्म आ रहा है, ये दोनों तो शुरू में ही आते हैं। ये तब आते हैं जब आपका इसम जाहिर फाइल होता है। ये दो सीगे कब आते हैं? पहला और चौथा। ये तब आते हैं, हमेशा वाहिद फेल आता है जब आपका इसम जाहिर फाइल होता है। जब फाइल आपका जमीर होता है, यानी बाकी 12 सीगों में आ रहे हो, सीगों में से कोई सीगा आ रहा है, तो फिर आप उसका फाइल जो है वो अंदर ही से लेंगे, उसके साथ ही लगा होता है माजी में। फिर अगर बा आ लिखा हुआ है तो फिर आप आगे नहीं ढूंढेंगे। मसलन बा आ लिखा हुआ है या बा ऊ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ तो अभी मुसन्ना वाला दिया नहीं है ना, बा ऊ लिखा है। अब आप इसमें फाइल आगे ढूंढेंगे, ये नहीं, सब नहीं नहीं। लिखा हुआ है, ये आपके पास ये लिखा हुआ है। अब ये आपके पास ये एक फेल अंदर है। है, ठीक है। ये तो इसके मुताबिक लाएंगे ना, पीछे के मुब्तदा आया तो उसके मुताबिक। अगर ये ही सिर्फ लिखे हुए हैं तो अब इनका फाइल आप क्या बनाएंगे? बाऊ का फाइल क्या है, बेना का फाइल क्या है? साथ ही लगा हुआ है ना, बेतुम बेतुन्ना, ठीक। ये सब फाइल है ना। बॉ फाइल है, हम्म नून फाइल है, तुम फाइल है, ये सब फाइल है। हम्म हम्म तो अगर पहला और चौथा सीखा आ रहा है तो फिर आगे देखें, अगर आगे नहीं हम्म आ रहा तो जमीर बना ले। हम्म, सही है। जमीर बना ले, हुआ इसमें हिया बना ले, ठीक है। फिर तो इसी की तरह होगा ना, जैसे ये है जिसके अंदर हुआ है इसमें, तो वो जमीर जो होती है वो फिर उस, अगर इसम जाहिर फाइल नहीं है तो अंदर वाली बना ले हुआ, और इस तरह सारी, फिर वो मैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन में करना शामिल, चाह रही हूँ। फिर वो बिल्कुल इसी की तरह ही हो जाएंगे। अगर इसम जाहिर फाइल नहीं आ रहा ना तो फिर उनका फाइल साथ ही लगा हुआ है, समझ ले। हम्म 12 में साथ होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी कष्ट उठानी पड़ेगी। अच्छा भाई, इसमें तो साथ नहीं लगा हुआ, मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो हुआ होता है। इसमें भी ये इसको ना बनाए, इसको कभी भी फाइल ना बनाए, ये मुअन्नस की अलामत है। तो बाअत के अंदर ही फाइल ढूंढे, ऐसा ना कहें कि ता सुकून फाइल है। हाँ, इन दो के अलावा जो है आप ये ता को सुकून, ता को फाइल बना सकते हैं, इसको इसको बना सकते हैं। समझ आ गई है रूबा? है ना? ये बेस को ना जी मिस मजबूत ये करना है, माजी की गर्दान को। सही है ना? जी और मिस ये अगर वो तो मिस आप समझाने के लिए बता रही है ना कि तार जबर तार जो है हाँ, सेकंड पर्सन वाला, इसको हम लोग फाइल बना सकते हैं, हाँ, लेकिन वो ये है तो ये इसको भी अलामत ही बना ना। सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं।
जी। ठीक है, इस ता को बना सकते हैं, इस ता को नहीं बना सकते। चार ही तो ता आ रही है ना, और ये जी। बड़ी ता आ रही हो तो जितना बड़ा भी पीछे फेल होगा, अगर बड़ी ता आ गई है तो वो आपका क्या होगा, अगर वो रूट वर्ड नहीं है ता तो। ठीक है ना। अब आ या तुमको आप ये ना कहें कि ये ता जो है टीचर नहीं ने नहीं, अब ये ये तो जो है जमा फाइल की है, है। या ये मोनस की अलामत है, ये अलिफ नहीं। ता जमा की अलामत है। और ये इस जी। समय ये फेल है नहीं, इसमें फाइल ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, तो हर अलिफ ता जो होगा वो नहीं होगा, बड़ी ता नहीं होगी। थोड़ा सेंस भी यूज करना। अच्छा, ये हमारी साइज होगी। अब ये वाली थोड़ी आसान है, इसमें भी हम सीखेंगे क्या करेंगे। रूबा पाए पढ़े इकरमा अली। اقرأ ما يلي. Read हम्म, the following. हम्म, غاب زميلي يوما وأنا غبت يومين. हम्म। पहले तो देखना है जुमला फेलिया इसमिया, सबसे पहले यही देखना है। ठीक है, failure. फेलिया है क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है, तो फेल कौन सा जी। है पहले वो देखना है। غاب غائب. माजी है, फिर उसका रूट वर्ड देखना है। उसके रूट वर्ड में हमजा आ रहा है, या आ रहा है, दो लेटर डबल हो रहे हैं, या फेल जो है वो सही है। सही फेल जो होता है, जैसे यहाँ पर आपका दराबा लग जाए तो वो फेल सही है, लेकिन अभी क्या है, दराबा तो नहीं है ना इसमें, तो आपका अलिफ आ रहा है, इसका मतलब है लाजम रूट वर्ड में अरफेलत आया है। अब हमजा कौन सा हाँ. वाला आया ये आपको पता करना है। बो से बदला है हमजा. या या से बदला है। यही मैं पूछना चाह रही थी आपसे पहले कि किस तरह अंदाजा लगाया जाएगा ये वाव है या है। या से, अच्छा, या मुझे से। ये हम्म, बताएं, गावा गावा बा लगाएं आप तो अरब अरब को मुश्किल में डाल देंगे ना। वो हाँ। लगा के देखेंगे ना पहले तो। अच्छा तो अच्छा, गावा बा तो नहीं पूछना होता। पड़ता है क्या। अगर अच्छा इसको अच्छा, याद, फावा दो ही हम्म, पॉसिबिलिटीज हैं, वो है जी। और अलिफ या है। ठीक है, या तो अभी हम क्या हम्म, करेंगे, या लगा के देखेंगे। यगबा, गाया, यगबा। गायबा। अब यगबा से क्या होगा, या से पहले जबर गाबा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये कि अगर आप इसका मुजारे बनाए ना, तो आप बनाए तो मुजारे क्या बनता है, गाबा यगीबु। यगीबु. यकीबु। यगीबू। तो या यकीबु। आ गई ना उधर, हम्म। जी। या उधर आ गई ना मुजारे में, तो इसका हाँ, मतलब है ओके। डेफिनेटली आपका रूट वर्ड या या है। है। अच्छा, वही मैं सोच रही किस तरह अंदाजा, आई नो वाव जो होता है वो अलिफ में तब्दील हो या जाता भी तो। बदलता है, दोनों बदलते हैं। ठीक है। अच्छा, या भी अ- बदल, दोनों बदलते हैं। अब अच्छा। आप मुजारे बना के देखें तो उसमें आता है, जैसे कवा ला होता है तो वो काला होता है ना। अब काला को आपने देखना है, इसका रूट वर्ड फर्ज करो, आपको नहीं आता है ना। जैसे यकूल। आपका हाँ सारा है, अब हाँ हाँ। सारा का रूट वर्ड जो है ना, अब यसीरु। इसमें भी आपको रूट वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो आप इसका जी। मुजारे बनाएंगे, सारा यसीरू बनता है। यसीरु, हाँ। मेक यसीरू में सेंस। या आ गई, जा आ ये जी उ, या आ गई ना, जी। ये जी उ, है या ना। आ गई। ओके, समझ आप गई। इससे पता ओके। चल जाए। अच्छा अच्छा, लेकिन उससे अगर पता चल। वो रूट वर्ड है तो उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, हम्म। उसमें आपको वो ही लगाना पड़ेगा। उस अच्छा, उसका एक एग्जांपल दें, वाव वाला। हाँ, तो आप मुझे एग्जांपल दें कोई हम्म एक जिसमें वो मिडिल में आ रही हो। जैसे हम्म काला की हम्म, मिसाल ले लेना। अब सर। काला है, ठीक है। अब आप इसका मुजारे अच्छा, बना अभी के क्या देखें, था। आपको नहीं पता चल रहा ना। यक तो आप, यकूल यकीली, हाँ यकीली नहीं होगा तो यकूलू सही। सही लग रहा है, राइट। वो तो लग रहा है यकबुलू बनता है ना, असल में तो यकबुलू बनता है। फ़अला यकूल। यफ़उलू बनता है ना, बाब नशर से फ़अला यफ़उलू। हाँ, तो फ़अला पे यकूल। ये क्या बन गया, कवला बन गया। हाँ और इससे इस पे क्या बन गया, यकवुलू बन गया। हाँ, कवाला यकूल। हमारे टीचर्स हमें ये चीजें नहीं बताते थे, इतनी बारीकियां। हम्म वो कहते थे रटो या कबूलू, और मैंने कभी नहीं रटा। मैं अंदर घुसती थी और पता करती थी कि मैं कैसे इसको यकूल। पहचानूंगी, मेरे स्टूडेंट का हाँ। सवाल आ सकता है। आपदा जैसे लोग भी हो हम्म सकते हैं। हम्म ठीक है ना। अब ये कवाला बना है, अब आपने इसको काला हम्म बनाना है, क्योंकि बीमार है ये बेचारा, रूट वर्ड इसका हेल्दी नहीं है। तो आपने हम्म देखा कि बीमार से पहले जबर है, तो आपने इसको काला में चेंज कर दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो जबर है ही नहीं जो इसको अलिफ में चेंज करे, है ना। हम्म पीछे जबर हम्म, होगी तो अलिफ में चेंज करेंगी ना। राइट, सुकून तो है। अब अलिफ जबर तो है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगी, इस पेश को पीछे ट्रांसफर करेंगे। तो दो ही हम्म कायदे हैं। एक कायदा ये है, एक कायदा ये है ट्रांसफर का, और एक कायदा कालना है। कालना, इसको कहते हैं कायदा कालना। यानी जब आप छठे सीधे पे आएंगे तो आपका लफ्ज इस तरह बनेगा, कावलना बनेगा आपका।
हम्म कावलना बनेगा। जब रूट वर्ड हम्म डालेंगे, इसमें रूट वर्ड डालें, ये रूट वर्ड डाल के ये बना है ना, फालना था ना पहले ये। हम्म फाल नहीं होता माजी में, तो सब फाल नहीं होते हैं। मुजारे में जाके जो फिर वो होता है कि बाप में देखा जाता है मुजारे पे क्या हरकत आ रही है, तो वो फिर क्या हम्म बन जाएगा, यफ उलना बन जाएगा मुजारे में जाके। लेकिन माजी में तो फालना ही होता है, इसलिए हमने फालना में जब डाला अपना रूट वर्ड, तो ये कावलना बन गया था। हम्म फालना के वजन पे कावलना बन गया था। अब बहुत से लोगों को ये चीजों की समझ आए, लेकिन अब कुछ को लिए दोहराना पड़ रहा है मुझे। लेकिन अच्छा है जितना दोहराए। अब मुझे बताएं इस शनाज के बाद क्या करेंगे हम। कवलना बन गया। मैम मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगी, वो मेरा बेटा सबक सुना रहा है ना, तो डिस्टर्ब होगा, आवाज आई। अच्छा अब ठीक है, किसी और बंद से कर कर। दें। कोई और बताएं कवलना को कैसे चेंज करेंगे। जुबैदा, आपका भी कोई रो रहा है। कवलना। मैम इसको तो पता है, उलना बन जाता है ये मुझे। अ, कुलना कैसे बनेगा मुझे बताएं। कुलना तो बन ही नहीं सकता। वो कुलना तो एंड में बनेगा, अभी तो बीमारी दूर करेंगे तो सेहतमंद होगा तो फिर घर भेजेंगे ना। कुलना तो तंदुरुस्त हो जाता है ना, फिर उसके अंदर जो बीमारी है अभी वो दूर करनी है। पालना के वजन पे जब हमने डाला तो कवलना बन गया ना। मैं बताऊं, पहले तो अभी तक हरफिल्लत मौजूद है, उसको दूर करना है बीमारी को। हाँ पहले तो बताएं। इसको अलिफ डालेंगे, पहले तो वाव को अलिफ से बदल देंगे। हाँ क्यों बदलेंगे, पता है आपको क्यों बदलेंगे। क्योंकि उससे पहले मैम जबर आ रही है। हाँ तो इसको अलिफ में बदलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें जी। ट्रांसफर का कायदा नहीं करना। नो मैम। ये बन जाएगा कालना। कालना। अब अलिफ पर अब भी सुकून, अलिफ पे भी जजम, सुकून है, लिखा नहीं जाता लेकिन सुकून होता है। अलिफ खाली और होता लाम है, पर भी जो अलिफ खाली होता है साकिन होता है ना, सुकून होता है। इस्तेमाल साकिना हो ये जाएगा। अब इसको ये दो कलना नहीं सुकून पढ़ेंगे, ठीक है। जी। कलना क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें सकल आ रहा है ना। जी। तो अब चूंकि ये बाब नसरा से है तो फिर हम इसमें पेश लगा देंगे। जी। ना हो जाए। हाँ अब जब बाब नसरा होता है उसके मुजारे पे पेश आती है ना। आती हम्म। है ना। जी मैम। जी जी मैम। तो कुल हाँ इसलिए हम पेश लगाएंगे। ओके क्योंकि काला यकूलू होता है तो यकवुलू होता है, मुजारे पे जाके पेश आती है। यफ़ा अला यफ़उलू होता है। तो बाब नसरा में क्या है, पेश होती है, इसलिए हम पेश लगाएंगे। और करमा करुमा में करमा यकरुमू होता है, तो इसलिए उस पर भी पेश लगा। उसके बहुत कम बनते हैं, उसको भूल जाएं। आप सिर्फ इसको याद रखें, ठीक है। और नसरा में पेश आएगी। और बाकी जितने भी बाब है, कौन कौन से बाब है बाकी। फा है, दौद नून, है। दौत, बहुत है दाद और नून को नून। छोड़ तीन दे, है नून को हाँ छोड़ दे। हा सीन, हाँ सीन, सीन काफ। तीन। का करुमा के हा काफ सीन काफ। काफ नहीं एक और भी है, हा भी है ना। जी हाँ। हाँ ये जो आप तीन बोला था बाब है सीन। ना, करूँ में और नून में तो पेश आ जाएगी ना शुरू में। जी। इनके राइट मुजारे में पेश होती है, इसलिए पेश आएगी, क्योंकि ये बाप नसरा से बने हुए हैं दोनों। दोनों बाप नसरा से बने हुए हैं, सॉरी। एक करुम दोनों के मुजारे में पेश आ रही है। ये बाप करुमा है, ये बाप नसरा है। तो दोनों के मुजारे में पेश आती है, इसलिए हम शुरू में पेश लगाते हैं। यहाँ पर इनके जो है ये बाप, इनमें आपने क्या लगाना है, इनमें सब में आपने जेर ही लगानी है। ठीक है, जब भी आपको लगानी होगी जेर लगाएंगे। अब ये मजहूल की बात नहीं हो रही है, मजहूल को भी बिल्कुल अलहदा रखें। हम सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं ना, मारूफ फेल पढ़ रहे हैं। मारूफ का क्या मतलब है, जिनका फाइल पता होता है। मारूफ जी। नोन होता है उनका, मारूफ का मतलब होता है नोन। तो ये उनको पढ़ रहे हैं, मजहूल को नहीं पढ़ रहे। मजहूल जब आएगा मजहूल देखेंगे। अभी हमारी लड़ाई किससे है, हरफिल्लत वालों से। मारूफ से। ये अजवफ या ही अजवफ। मिसाल हमने पढ़ लिया, उसमें हरफिल्लत आया था, वाव आया था, या तो मिसाल वावी और मिसाल याई। अभी हमने अजवफ वावी पढ़ लिया, अजवफ याई पढ़ लिया। फिर हम नाकिस पढ़ेंगे। नाकिस की मिसाल जैसे दाल ऐन वाव। ठीक है। आखिर में आ गया ना, काफ जी दाद या। इसको कहते हैं नाकिस की मिसाल। नाकिस क्या होता है,
जिसके आखिरी लेटर में। मिसाल क्या होता है, जिसके शुरू के लेटर में हर्फ इल्लत वो यहाँ है। अजवब क्या होता है, जिसके मिडल में आए। और ये क्या है, नीचे। जिनके आखिर में आए। ठीक है, जज़ाकल्लाह समझाने ये का जी। नाकिस कहलाता है। ये फेल नाकिस कहलाता है। और ये वाला इसमें मिसाल को मिसाल क्यों कहते हैं, मैंने बताया था, इसमें चेंजिंग नहीं होती। माजी में तो बिल्कुल नहीं होती, मुजारे में एक सीगे में जाके चेंजिंग होती है। ठीक है, तो वो हम करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आगे क्या है, वो अन्ना गिब्तू कैसे बना है भाई अभी? ये कौन सा सीगा है, पहचाने? ये तो पहला था। बस ये माजी का 13 है। मैम ये तेरहवा 13। 13 है। 13। 13 है। इसमें अन्ना जमीर है, या ये ता जमीर को कह लें। ठीक है ना। राइट। तू का मतलब मैं होता है ना। जी। तू का मतलब जी। अरबी में मैं होता है। जब जब तू आएगी ना जमीर, तो उसका मतलब होगा मैं। और तुम हो जाएगी तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। दान फिर दान की। नहीं, तू का मतलब मैं है सिर्फ, तुम का मतलब हम्म। मैं नहीं है। जी। क्या बोले, इस पे भी पेश आ रही है तो मैं। तुम सब। जमा मुज़क्कर। ये तो सब तुम होगा ना, तुम उर्दू में भी बोलते जी। हैं, है ना। ये देखिए, जी। हमारा ये उर्दू जबान कितनी मिलती है, हमारी कितनी आसानी है। बस ये आपने याद रखना है कि ये मैं है, ये अन्ना है। क्योंकि यहाँ अन्ना आया है ना, तो और हम। इसलिए अब ये जो फेल आया ना, इसके अंदर ऐसा सीगा लाना है जो उसके मुताबिक हो। ऊपर यही मैंने बताया था ना। ये मुब्तदा बन गया, अब जो खबर बनाएंगे वो जुमला फेलिया बनेगी। तो जब जुमला खबर बन जाता है, तो उसमें एक जमीर होनी चाहिए, वो चाहे जुमला इस्मिया बन रहा हो चाहे जुमला फेलिया बन रहा हो, दोनों में जमीर चाहिए। ठीक है ना। वो जमीर किसके मुताबिक होगी, मुब्तदा के। जुमला इस्मिया की मुफ्तदा। मिसाल भी दे देती हूँ, जैसे हामिदुन, ये मुब्तदा है ना। अब मैं जी। जुमला इस्मिया बना के खबर लाना चाह रही हूँ, यहाँ तो जुमला फेलिया है। जुमला इस्मिया बना के खबर लाना चाहती हूँ, तो हामिद के बारे में मुझे कुछ बताना है, खबर देनी है आगे, है ना। जी। हामिद दुन की खबर लानी है, और जुमला इस्मिया लानी है, तो मैं कहूंगी हामिद दुन अबू हु, अबू हु तबीबुन। ठीक है, अबू हु तबीबुन। तो ये मैंने जुमला इस्मिया बना के खबर लाई है। अबू हु क्या बन रहा है, मुरक्कब इजाफी, ये आपका मुब्तदा बन रहा है और ये खबर बन। दाखिल है। जी। हाँ, ये मुब्तदा बन गया और ये खबर बन गई, खबर। तो जुमला इसमिया बन गया ना। जी। जी। हाँ, अब मैं यहाँ पे अगर अबू हाल लिख देती तो गलत हो जाता, अबू जी। बिल्कुल हुम लिख देती तो गलत हो जाता, हम्म। सही। अबू का लिख देती तो गलत हो जाता। जी। हामिदुन अबू का तबीबुन। तो हम्म। मुझे बताना है कि हामिद के बारे में खबर कि उसके अब्बू जो है वो डॉक्टर है। तो मैं एक जमीर लाई ना, जो इसके हम्म। मुताबिक है। और ये जमीर में वो हुआ तो नहीं ला सकती थी, मुझे तो मुजाफिला बनती नहीं, तो मुझे मुजाफिला वाली मुतसिल जमीर लानी थी। ठीक है, तो जो जो पीछे जमीरें लौटती हैं ना, वो यही वाली होती हैं, छोटी वाली हम्म। जमीरें, ये पीछे लौट रही होती। हु हो गया, हा हो गया, कभी आपने देखा हु पीछे हुआ पीछे लौट रही हो, ऐसा कभी नहीं होता। होम इस तरह। तो ये आपका क्या है, अब इस जुमले में मुझे एक जमीर लानी थी जो उसके मुताबिक हो, तो मैं ले आई। अगर मैं ये ना लाती तो सोचें क्या होता, फिर ये इंजन अलग पड़ा रहता और डिब्बे अलग पड़े रहते, बीच में कोई हुक ही नहीं हम्म। होता। और जब जी। इंजन स्टार्ट होता और आगे जाता तो डिब्बे पीछे ही रह जाते, हम्म। बोगियां सारी खड़ी रह जाती। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी देती हूँ, जैसे ये एक टीचर है, ठीक है। अगर स्टूडेंट उन उसके साथ जोड़ेंगे तो वो उनको लेके जाएगी ना आगे, है। अगर हम्म। नहीं जुड़ेंगे तो वो उधर ही पड़े रहेंगे स्टूडेंट। और वो आगे, जो 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 नहीं जुड़ेंगे, कुछ जुड़ गए हैं कुछ नहीं जुड़ते, जिनको जिन जो जुड़ गए हैं उनको तो वो ले जाएगी आगे टीचर, लेकिन जो नहीं जुड़ेंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। तो दो मिसालें, बेहतरीन मिसालें हैं इस बात के लिए कि जब भी आपने जुमले को बनाना है तो उसमें जमीर लानी है जो कि मुब्तदा के मुताबिक हो। कौन बातें कर रहा है, किसका माइक खुला हुआ है?
बच्चों के ऊपर है ना क्योंकि देखिए टाइम नहीं था इस दिन मंडे को इनके पास टाइम था मंडे को क्योंकि सैटरडे को भी हम गए संडे को पैदा का लग रहा है तो क्लब। मंडे को टाइम तब था से फिर मैंने इनको कहा नहीं तब उनके घर से तो मेहमान आए कन्वर्सेशन हैं तो चल नहीं रहे हैं। आज म्यूट तो कर नहीं जा लें सकते प्लीज, मेरे बारे फिर में तो मुश्किल बात हो कर जाता रहे हैं। आपके मेहमान आए हुए थे ना मंडे को ये बात कौन कर, अच्छा जुबैदा है शायद, है ना? पैदा है। हाँ तो फिर मैंने इनको कहा नहीं वो आज तो नहीं मैंने सूफिया कहती आज हम जाएंगे जुबैदा का माइक म्यूट करना। चलो हो गया। अब क्या करना है मुझे, रिब्तु 13वां सीग है, ठीक है। अब इसमें मुझे अन्ना के यहाँ पे मैं रिब्ता भी ला सकती थी, रिब्ती भी ला सकती थी, लेकिन वो इसके मुताबिक नहीं होता, अन्ना के मुताबिक। जी अन्ना रिब्ती या अन्ना रिब्ता लगाते या इन्ना रिब्तुम लगाते, कोई रिबना भी लगा सकते, लगाने को तो सब लगा सकते थे, लेकिन वो मैच नहीं खाता। तो जब भी फेल बाद में आएगा तो वो मुताबिक होना चाहिए इसके मुब्तदा के, और जब भी फेल शुरू में आएगा तो फेल वाहिद आएगा। शुरू में जब भी आएगा फेल वाहिद आएगा। अगर फाइल इसम जाहिर है और शुरू में फेल आ रहा है तो आप नहीं देखेंगे ये जमा के सीधे है तो मैं फेल वाहिद ला रही हूँ। बस उस वक्त आपको ये देखना है कि ये मुजक्कर है तो मुजक्कर ला रही हूँ वाहिद की नहीं ला रही, मुअन्नस है तो मुअन्नस ला रही हूँ कि नहीं ला रही। सही है। जी। अच्छा जी, अब बता मता जीता। जिئता हाँ मता जिئता इलल जामिअती, हम्म। कब तक कब कब तक कब जाओगे तुम? कब व्हेन। जी जीता माजी है ना। जी जी। ता का मतलब तुम। तुम हाँ, जाओगे जामिया, जीना, जामिया की जीना तरफ। वो आई, है ना। जीना जी। क्या था, वो सब आई, औरतें आई। औरतें। मैं चाहती हूँ कुरान मजीद में आप सीगों को पहचाने फिर खुद तर्जुमा करें, ठीक है ना। और जीता क्या, कब तुम आई, मुअन्नस है ना, मुअन्नस नहीं है सॉरी, जबर लगी है ना। मैं अगर सब जी ती मुजक्कर होता है, मुजक्कर ना, है। तुम आए मुजक्कर है। अगर ये जी ती होता ना तो फिर होता तुम तो मैं मुअन्नस आए। मान तो मता अजीता, कब तू आया, इलल जामिया जामियती। अब यूनिवर्सिटी। आने का ही मानी आएगा, जा आ क्या होता है, आना ही होता है ना। जी आना आना आना। तो कब आया तू इलल जामियती, तर्जमा यूनिवर्सिटी ये से तो गलत हो गया। जा आ के साथ तो इला नहीं आता, है ना। इला आता है, इला जहबती होता है। कब तू जाएगा या कब तू मता जहबता इलल जामियती, कब तू जाएगा। अब यहाँ पे या तो ये सही ये है तो या फिर पास्ट गलत। टेंस तो होगा ना, ये तो पास्ट टेंस है ना। नहीं आप नहीं, कब। कब आए। हाँ ठीक है, आप कब जी। आए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। फ्रॉम आएगा, ये तो फ्रॉम का मीनिंग देता है ना। बस जाएगा। वहाँ की तरफ भी होता है। मता, कब बस तू क्योंकि इसका हाँ आंसर जाना, जाना होता तो है ना, जा, आप लोग भी आना आना हाँ, करें। मस्जिद असल की में तरफ। देखें, बात जाएगा। सुने, मेरी बात गौर से सुने। मैं आना आना क्यों कर रही हूँ कि जा आ का मीनिंग आना भी होता है जी हम्म और जाना भी होता है, तो असल मीनिंग होता है जाना। हम्म लेकिन ये इतना यूज होता है आना के मीनिंग में कि इसका आना ही मानी दिमाग में आता है, ठीक है। अब आना कब हम्म बनेगा, जब इसके बाद बी आएगा। वैसे इसका अभी यहाँ पे किसी ने बात की है ना, तो वो कह रहा है ना जाना, तुम कब हम्म, जाओगे इलल जामियती, तब सही है। मस्जिद की तरफ। आना के जी। माने में करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हम्म आपने सोचना है कि मैंने यहाँ पे क्या मानी करना है। तो तुम कब जाओगे यूनिवर्सिटी, जी तू फी في ذي फिर अब في القعدة جئت फी في ذي जिल القعدة वादती, यानी महीने तुम मैं कब जाऊंगा। यूनिवर्सिटी जाओगे, तुमने कब यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है। वो अभी का नहीं पूछ रहे, यानी छुट्टियां हैं कब वापस जाना है तुमने, ये मतलब है। तो जी तू, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा फी जिल कादती, यानी फेल माजी में तो आप इसका तर्जुमा मुदारे में क्यों कर रहे हैं? फेल माजी है ना, मैंने तो जियता तो। हाँ तो करें तर्जुमा, आप करें फिर बैठ के, चले माजी में कर ले। जी तू मैं जाऊंगा तो या
جی جیتو فی ذی القعدتی، میں آیا ذی القعدہ میں. ہاں، یعنی ذی القعدہ میں آیا، ماضی ہے تو پاسٹ ٹینس میں ہو گیا، تو یہاں پہ کیا ہوگا ترجمہ پھر؟ تو مطلب متا جاتا الی الجامعتی، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تم کب آئے جامعہ کی طرف، جامعہ یعنی یونیورسٹی میں کب آئے. تو اس کا جواب اس نے دیا ہے کہ میں آیا ہوں ذی القعدہ میں. اچھا، یونیورسٹی میں یعنی یونیورسٹی کی طرف کب آئے، ہے نا، جی یعنی کب داخلہ لیا تم نے، یہ مطلب ہوگا نا. جی میم. آنے کا معنی تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو میں کر رہی تھی وہی آ رہا ہے نا، جی آنے کا ہی معنی آ رہا ہے. اب جہاں جانے کا معنی نہیں آ رہا، جیسے آپ ٹرانسلیشن کر رہی ہیں تو جانے کا نہیں آ رہا، پھر آنے کا آ رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ، اس کو یاد رکھیں. جب اب دیکھیں وہاں پہ بھی جب آ جائے گی، وہ تو اذا کی وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہے نا، ماضی کا مضارع میں آ رہا ہے کیونکہ یہ حرف شرط ہے. تو حرف شرط کے بعد ہمیشہ اس میں ترجمہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ متا، کب آیا تو، اب یہ ٹیچر پوچھ رہا ہے یا کوئی اور دوست پوچھ رہا ہے، کوئی بھی پوچھ رہا ہے کلی کہ تم یونیورسٹی میں کب آئے، کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے نا. تو تم کب آئے یونیورسٹی، یعنی یونیورسٹی کی طرف. جی تو فی ذی القعدہ، میں ذی القعدہ میں آیا. اب اس کا ترجمہ صحیح بن رہا ہے کیونکہ یہ ماضی ہے. بیکم بیعتا. جی میم. بیکم بیتا، بیکم بیعتا بے سیارتہ کا اچھا یا امر. امر پڑھیں گے، امرو نہیں پڑھیں جی گے. اس کو ساکن کر دیں، یہ صرف عمر اور اس میں فرق کرنے کے لیے، ورنہ عمر اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو بیکم بھی سیارتہ کا، تم نے کتنے میں بیچی، خریدی نہیں. میم خریدنے، میم خریدنے کا آتا ہے نا میم، با کا میننگ خریدنا ہوتا ہے یا بیچنا ہوتا ہے؟ خریدنا ہوتا ہے. میں بیچنا، نے پتا ہے اس میں مجھے تجارت. اشترا کا مطلب خریدنا بیچنا دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خرید و سیل. فروخت. لیکن با آ کا مطلب صرف بیچنا ہوتا ہے، اور مجھے یہ اس میں بہت پرابلم ہوتی تھی تو میں نے بی سے بیچنا رکھ لیا. مجھے بہت جب سملیرٹی ہو جاتی ہے نا تو پھر مجھے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں رٹا تو لگاتی نہیں ہوں. پھر میں نشانی رکھتی ہوں کہ با سے بیچنا، اور اشترا جو ہوتا ہے اس میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنی آتے ہیں. اشترا یشتری جو ہوتا ہے نا، تو یہ آپ کا بیچنا ہے. کتنے میں بیچی تم نے، پاسٹ ٹینس ہے نا، کتنے میں بیچی تم نے اپنی گاڑی اے امر. بے تو ہاں نیچے میں نے بدل بن رہا ہے بیچا نا، ہے. یا امرو. فعل امر، ہاں، یہ تو کتنے میں کام بدل کی بدل مس، یہ یا امرو جو ہے وہ بدل بن رہا ہے نا، جو آپ نے پہلے سمجھایا تھا. کس کا بدل بنا رہی ہو، پیچھے کچھ ہونا بھی چاہیے نا، گاڑی کا. میں سجارت کا ہے نا، ضمیر بھی ہے کا. ہاں نہیں، اس اور کو بدل، یا ہاں اس کو نہیں بدل بنائے. بدل اس طرح اچھا، نہیں بدلتا بنتا، اس طرح نہیں بنتا. یہ تو پھر کیا ہے، کا ضمیر تو مجرور ہے نا. تو بدل میں تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا سیم اعراب ہوتا ہے، اور یہ مرفوع ہے کیونکہ حرف ندا کے بعد جو آتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، جب تک کہ وہ مرکب اضافی نہ ہو مرفوع ہی ہوتا ہے. اور یہاں یہ کا ضمیر کی جگہ دیکھیں تو مجرور ہے یہ، ہم ہے اس نا. کو منصوب ہے سجارت کا. کا منصوب ہے، جی. ہاں منصوب ہے، ابھی تک منصوب ہی ہے. بن کیا رہی ہے وہ دیکھنا ہے، کس جگہ پہ آ رہی ہے، اس کی حرکت کو نہیں دیکھنا، ضمائر کی حرکت کو نہیں مس دیکھا جاتا. مضاف لے. ایسے تو ہوا پہ بھی زبر آ رہی ہے، آپ بولیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ منصوب ہے، منصوب ہے یہ. ضمائر اب اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، ٹھیک ہے. اب مجھے پہلے آپ اس کا جواب دے دیں پھر میں بتاتی ہوں. مس سجارت کا مضاف الیہ بن رہا ہے نا. ہاں تو کہا ضمیر کیا ہو گئی، مس کا ضمیر مجرور ہے نا، کیونکہ وہ کیوں مضاف مجرور الیہ ہے، ہے. زبر آ رہی ہے اس لیے. نہیں نہیں، ہاں، مس کیونکہ مضاف الیہ ہے نا، وہ مضاف الیہ آلویز مشہور ہوتا مجرور ہے. ہوتا ہے. تو آپ نے جی ضمائر جو ہوتے ہیں نا اس کی، اب دیکھیں یہ کم ہے نا، کم جی مبنی ہے کیونکہ حروف استفہام میں سے ہے. اب کم کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، یہ مبنی ہے نا، مبنی ہے، اسماء استفہام سارے مبنی ہوتے ہیں. جی. اب اس نے آپ نے دیکھنا ہے تو پیچھے دیکھیں گے پیچھے کیا آ رہا ہے.
ये किस जगह पे आ रही है, ये मजरूर की जगह पे आ रही है, तो ये मजरूर कहलाएगी। एराबी हालत इसकी मजरूर होगी क्योंकि बी आ गया पीछे, ये जार जी, मजरूर हरफ बन रहा जर। है। जी। इसी तरह यहाँ पे आपने देखना था, ये मुजाफ है और ये मुजाफिर है। थी ना मेरे गुस्से वाली बात, बताएं। जी मिस, बिल्कुल थी। लेकिन अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है। आप लोग गलतियां करते हैं ना, तो मुझे बहुत, मैं कहती हूँ चलो अब इसकी जो अंदर जो चीज थी ना वो निकल जाएगी शायद। ठीक है ना, आइंदा ये गलती नहीं आएगी। ज्यादा मिस। हाँ। और जज़ाकल्लाह। इसलिए मैं थोड़ा सा उस वहां पे सख्त भी हो जाती हूँ ताकि आपको पता लगे कि डांट पड़ी थी। अब बी तब है, ता पे जबर है। अब ये भी जमीर ही है ना, फाइल है ना, जी मिस। तो आप इसको ये तो नहीं कहेंगे इस पे ता पे जबर आ रही है तो ये मंसूब है। नहीं नहीं। क्या कहेंगी? फाइल बन रही है तो फाइल की जगह पे आ रही है तो क्या होगी? मरफू। और मरफू मुनफसिल होगी या मुत्तसिल होगी? मुत्तसिल। मुत्तसिल होगी, क्योंकि फेल के साथ जोड़ के आ रही। जी। तो फाइल हमेशा क्या जमीर होती है? मरफू मुत्तसिल। और ये वाली जो मुदाफ बनती है मजरूर मुत्तसिल, और जो हरफ जर के बाद भी आती है वो मजरूर मुत्तसिल। तो अभी तो ये गलती नहीं होगी ना। नहीं मिस, अच्छा, इंशाल्लाह बदल नहीं होगी। नहीं, अच्छी बात है। बदल जो है ना, वो बदल और मुबद्दिल मिन्हु जो होता है, दोनों का इराब सेम होता है। ठीक है। तो मुबद्दिल मिन्हु आपने इसको बनाया और उसको बदल बना दिया, तो इस ये तो मजरूर है और ये तो मरफू है, क्योंकि हरफ निदा के बाद जो भी आता है मरफू होता है अगर वो मुफरद हो तो। अब यहाँ पे भी ये पॉइंट याद रखें कि ये मुफरद है। मुरक्कब इजाफी बन के भी मुनादा आता है ना, जी। उसमें फिर जबर आती है मुजाफ पे। ये एक जबर के साथ, एक पेश के साथ मरफू हो रहा है, वरना ये अमरुन होता है। बेशक वो आ रही है आगे, लेकिन ये अमरुन होता है। अगर या ना लगा होता तो आप इसको अमरुन पढ़ते, अब या लग गया तो आप इसको अमरू पढ़ रहे, अम्र पढ़े, या अमरू पढ़ लें लेकिन वो को ना पढ़े, अमरू ना करें। इसको ये पेश देनी जरूरी है क्योंकि हरफ निदा के बाद जो आता है मुद्दा उसमें पेश आती है। तो या अमरू पढ़े, उमर नहीं पढ़ सकते इसको आप। उमर क्यों नहीं पढ़ सकते? इनसे क्या क्योंकि पड़ता है ना, हरफ निदा के बाद हमेशा पेश आती है इसलिए। पेश आती है और उसमें वो भी नहीं आती ना। जी। और वो तो नाम में है ना, नाम में मौजूद है ना वाव। लाम में। अमरू नाम है ना, उमर नाम तो नहीं है। हाँ। हाँ, उमर नहीं है, उमर में पेश होती है। लेकिन देखिए मेरी बात सुनो, ये जब आप अरबी की किताब उठाते हैं, मैंने कल परसों भी बात की थी, तो उसमें ये इस तरह लिखा, उमर और अमर में कोई फर्क नहीं होता। अब वो क्या, उसका नाम कैसे पढ़ेंगे, या उमर पढ़ेंगे या अमरू पढ़ेंगे। बात इसी तरह अरबी में लिखा होता है ना, जी। या उमर जी मिस। पढ़ेंगे। दोनों जगह या उमर ही पढ़ जाएंगे ना। लेकिन अगर उसका जी नाम अम्र है तो फिर कैसे फर्क करेंगे? मिस, क्योंकि इस उस पर जबर होगा ना और उस पर उसके पेश आगे होगा। वाव जबर लगा। बबर तो लगी हुई नहीं है ना, अरबी में नहीं हरकत लगाते हैं। आपने कभी अरबी मैगजीन नहीं देखा, अरबी अखबार नहीं पढ़ा? नहीं मिस, हाँ नूरुल यकीन पढ़ते हैं तो वहाँ देखा था कि नहीं लगे होते ना, नहीं लगे वहाँ होते खुद ना। लगाने होते तो हैं। वहां पे तो उमर को भी इसी तरह लिखा होगा और अमर को भी इसी तरह लिखा होगा। मैम ये जी। वाव है ना, यही ये इसकी वो जो निशानी है है। ना, ये फर्क करेगी बस, कि ये इसको अमर पढ़ना है और इसको उमर पढ़ना है। इस वाव के लगाने का ये मकसद है बस, ताकि तुम इसको अमर ही पढ़ो और इसको उमर ही पढ़ो। बात समझ आ गई है नहीं। ना? जी मिस। ये पहले भी बताई है लेकिन पता नहीं वो सारी चीजों में आप भूल जाते हैं। अभी आप इसको कॉपी में नोट करें, या फिर ये इसको अमर ही पढ़ना है, चाहे इसके ऊपर ये हरकत लगी है या नहीं लगी, क्योंकि वो लगा हुआ है। ठीक जी है। मिस, मैंने कर और अगर लिया है। वो नहीं होगा तो इसको या उमर पढ़ेंगे। अभी आगे आपको नहीं भी देंगे, फिक्र नहीं करें, आपको नहीं भी देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? तू हा, अब हा की जमीर किधर जा रही है? सैयारा की तरफ। और ये क्या इस जमीर का क्या है, राबी हालत क्या है? मिस ये भी मजरूर है ना, हाँ, क्योंकि शाबाश मुदाफ माशा। इलैही है। नहीं नहीं मैम, मफऊल मुत्तसिल है ना। यही तो मसले है ना। नीम हकीम खतरा जान। अभी ये नीम हकीम है ना,
अब देखें, ये पीछे देखा करें, पीछे अगर इसम आ रहा है तब ये आपकी मजरूर मुत्तसिल होगी। वैसे तो मफूल बन रही है। तो अब इसको क्या कहेंगे? अब ये फाइल बनेगी मिस तो मरफू मंसूब मुत्तसिल मुत्तसिल, होगी। मंसूब मुत्तसिल। हाँ, क्योंकि मफूल बन रही है। जी। मुझे ता नजर ही नहीं आ के दिया। ता जो है ना वो आपका वाह, सही है ना? तो बिसमानियती, अब समानियती आया है, हालांकि समानियतू भी होता है ना, समानियतुन भी होता है, लेकिन बी की वजह से जेर आ रही, मजरूर। जी। एक जेर के साथ मजरूर हो रहा है। अलाफी, अलाफी के नीचे जेर क्यों आ रही है? हम्म, मिस अलाफी का मतलब क्या होता है? अल्फुन की जमा है ना। अल्फुन क्या होता है? वाहिद। मबरूक। हजार। अल्फन, अल्फन मबरूक नहीं कहते आप लोग? अल्फ अल्फ मबरूक। हाँ, उसकी जो भी बोलते हैं आप। उसकी उसकी सिर्फ बन रहा है इसलिए मजरूर है। नहीं नहीं, ये मुदाफ मुदाफ इलैह हो रहा है। हम्म। मुदाफ ना। हर्फ जर के बाद ज्यादातर मुजाफ ही बन रहा होता है। अच्छा। अगर आगे वाला लफ्ज जो होता है ना मजरूर होता है ना, तो हर्फ जर के बाद मुजाफ ही बन रहा होता है। अगर आपने मौसूफ बोला है ना, सिफत बन रहा है, तो हम्म इसके ऊपर अलिफ लाम आ रही है, इस पे नहीं आ रही। हम्म सब हम्म चीजें देखनी होती है ना। हम्म तो ये मुजाफ बन रहा है क्योंकि पीछे अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, और जेर क्यों आ रही है? क्योंकि उससे पहले हर्फ जर आ रहा है। हम्म मुजाफ पे तो कोई भी हरकत आ जाती है ना, लेकिन पीछे बी आ हम्म, गया तो फिर जेर ही आएगी। सही। मिडल में आ गया ना तो मिडल वाले के नीचे जेर ही आती है, और उस पर अलिफ तनवीन नहीं आती। अलाफी क्या है ये आपका? अब ये अलाफिन क्यों नहीं आया? अलाफिन भी तो आ सकता था, अल्फुन, अल्फन, नहीं, अल्फिन, अलाफिन। मुदाफ मुदाफ पे नहीं आती ना तनवीन। तो ये अगेन मुजाफ बन रहा है, मुदाफ इसलिए बन नहीं रहा है, आ रही। मुदाफ बन रहा है। यानी इसका तो जी। मुजाफ इलैह बना है। ठीक है, और फिर इस अगले right। वाले के नीचे दो जेर इसलिए आ रही है कि ये मुजाफ इलैह बन रहा है। हम्म। मुफरत खबर है मिस। तो ये फिर क्या है, उसका मुजाफ बन गया। मुदाफ बन गया। जितने भी मुजाफ और मुजाफ इलैह मिडल में आएंगे ना, वो एक जेर के साथ आएंगे। वो डबल रोल कर रहे हैं, मुजाफ का भी कर रहे हैं, मुजाफ इलैह का भी कर रहे हैं। तो ये वाला भी इसी तरह मुजाफ, ये भी इसी तरह मुजाफ, ये मुजाफ तो नहीं बन रहा, सिर्फ मुजाफ इलैह बन रहा है। ये डबल रोल कर रहा है। अब ये भी डबल रोल कर रहा है, इसका मजरूर भी बन रहा है और इसका मुजाफ भी बन रहा है। दे रहा है। तो आपदा इस तरह पहचानना होता है, आप बहुत करीब हो। ठीक है, थोड़ा नहीं सा, नहीं, कुछ लोग ज्यादा हाँ। कुछ थोड़ा होता है ना, देर से समझते हैं बात को, क्योंकि हमने इतने हम्म अरसे से पढ़ाइयाँ छोड़ी, हमारा दिमाग डल हो गया है ना। तो हम्म उसको जगाने में, उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर जो पढ़ते रहते हैं, हम्म स्टडीज करते रहते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते रहते हैं, कुछ भी, चाहे हम्म स्कूल के ही पढ़ाते रहे। हम्म, ठीक है ना? सही। तो जी। मैं तो दूसरों के जज़ा- बच्चों को भी पकड़ के पढ़ाती थी। कैडेट कॉलेज में हम्म बच्चों के भी कितने सख्त एग्जाम होते हैं, जो आर्मी कॉलेज, उन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। मेरा हम्म अपना बेटा गया था, 50 में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था। 50 हम्म बच्चों में से दुबई के अंदर एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था, वो मेरा बेटा था। हर लिहाज से इंटरव्यू में, उसमें सब में। और वहां के प्रिंसिपल आए हुए थे इंटरव्यू लेने। समझ आई है तुम्हें? हम्म तो मैंने हम्म उसको पढ़ाया। फिर उसके बाद कितने बच्चे हमारे मोहल्ले में से फिर कैडेट कॉलेज में गए, फिर इनका हम्म। बच्चा गया। जाहिर है कुछ देखते हैं अब लोग, तो भेजते हैं ना फिर बहुत अपने अच्छा बच्चे। पढ़ाती है माशाल्लाह से, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती है मैंने नहीं शायद से। पढ़ाना छोड़ा, पढ़ना बहुत अच्छा पढ़ाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ा। किया। और मैंने 11वीं का जो मेरा होता है ना, 11वीं का, कॉलेज में जब जाते हैं 11वीं में, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। हम्म मैं कंप्लीट ही नहीं कर, मेरा यूनिफॉर्म इतना प्यारा, वुमेन्स कॉलेज का, पूरा ऐसे ही पड़ा रह हम्म। गया, अभी भी पड़ा होगा क्यों, मेरी अम्मी के घर में। शादी हो गई क्या इसलिए? शादी नहीं हो गई, मेरे अबू बीमार हो गए थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सॉरी। उनका हम्म ऑपरेशन हुआ और फिर दोबारा से फिर उनका ऑपरेशन हुआ, डबल ऑपरेशन हुआ उनका एक ही जगह का। तो उसमें काफी हम्म रिकवरी में टाइम लग गया, मेरी अम्मी बच्चों को संभालती है ये। तो हम बारी बारी अब्बू के पास जाते थे। हम्म,
हाँ हालांकि वो मैं। नेवी में थे, उनकी बहुत अच्छी सर्विस हो रही थी, बहुत अच्छे ओहदे पे थे और उनकी हो रही थी, लेकिन अपने बंदे का होना है ना, वो बहुत जरूरी डेफिनेट। होता है। तो वहां से फिर मेरी तालीम का कनेक्शन टूटा। फिर उसके बाद फिर मैं, मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी। हम्म तो ये स्टोरी है, तो मैं नहीं, लेकिन मेरे अंदर से वो पढ़ने की जो होप थी ना, वो नहीं वो गई। नहीं गई। और मैं अपने आप अच्छी बहुत बात है। ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मुझे हमेशा इनाम मिलता माशाल्लाह। था एनुअल एग्जाम माशाल्लाह। में, चाहे बोर्ड का हो कहीं से भी हो, मेरा स्कूल में टॉप का ही होता था। लेकिन हम्म। मैं उतनी ही शरीर भी थी, रियली। इतनी शरीर थी कि जब भी उस प्रिंसिपल का नाम ही मुझे याद है, उसका नाम भी शमीम ही था। हाँ हाँ। जब भी वो दौरे पे आती ना स्कूल में, वो खिड़की से देखती तो मैं अपने डेस्क के ऊपर खड़ी होती थी। और मैं अपनी क्लास में शुक्र है। सबसे छोटी थी, मेरी क्लास में बड़ी बड़ी अच्छा। लड़कियां बुरकों में आती थी, मैं सबसे छोटी थी अपनी क्लास। कराची की बात कर रही हूँ, कारसाज की बात कर रही हूँ। हम्म मैंने पीएफ हम्म स्कूल से पढ़ा हुआ है कराची के, अगर कोई कराची में रहता है उसको पता होगा। फेमस, हम्म। बहुत मशहूर है, पीएफ बहुत कॉलेज भी मशहूर और है, स्कूल भी, बहुत सख्त भी है। पाकिस्तान एयरफोर्स का स्कूल है वो, जी, पीएएफ। सख्त भी अभी भी बहुत होगा, है। बहुत अच्छी टीचर्स थी, हमारी हम्म। पढ़ाने वाली भी बहुत है, मुझे एक एक टीचर की शक्ल याद है, उनके नाम याद है। माशाल्लाह। तो मैंने कभी कनेक्शन तोड़ा ही नहीं पढ़ने का, वो जो मेरा वहां पे रह गया वो कुदरत की तरफ से रह गया। हम्म। और फिर बीच में मुझे इतना टाइम नहीं मिला, और वो इतना जल्दी जल्दी हो गया, इसलिए मेरे बच्चे भी जो माशाल्लाह जो है ना, वो आगे बच्चों वाले हैं सारे। हम्म। तो ये कहानी है। तो इसमें मैं बता रही थी कि ये अगर आपका कनेक्शन टूट जाता है ना, ये डल हो जाते हैं आप। हम्म। कनाडा में मैं आई तो यहाँ पे ट्यूशन का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो मेरी ट्यूशन छूट गई ना जो भी मैं पढ़ाती थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रही थी, तो थोड़ा सा मेरा बीच में गैप आया और मुझे लगा मेरा दिमाग डल होने लगा। हम्म। पढ़ती थी मैगजीन अखबारात पढ़ती थी, सब चीजें पढ़ती थी, लेकिन वो वाली चीज जो पढ़ाने वाली होती है ना, वो एक अंदर शौक रह गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे दीन से जोड़ दिया, और दीन हम्म। से जोड़ने के बाद फिर मैं जब से मैंने पढ़ा है, 2 डेढ़ साल मैंने पढ़ा है, और उसके बाद से पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह। और पढ़ाने से आप पॉलिश होते हैं, इसलिए मैं हर स्टूडेंट को बैठ कहती हूँ पढ़ाओ, किसी ना किसी को पकड़ के पढ़ाओ। हम्म। असल में जो पढ़ रहे होते हैं ना आप, वो उसी वक्त पढ़ रहे होते हैं जब आप पढ़ा रहे होते हैं। हम्म। सही है। लेकिन कभी भी अपने हम्म। आप को कंप्लीट नहीं समझे, मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। हम्म। आप लोग तो फिर एक आध टेस्ट करते होंगे ना हफ्ते में, मैं डेली 2-3 टेस्ट करती हूँ मैं, अच्छा। पढ़ाने के साथ साथ भी, और वो भी हाई हाई लेवल के। हम्म। सोचे, तो इल्म की कोई हद नहीं है, वो तो कब्र तक हमने हासिल करना है। कभी भी अपने आप को मुकम्मल ना समझे कि मुझे हम्म। सब कुछ आ गया है। इल्म समुंदर है, उसमें से बहुत कम हम लोग ले पाते हैं। हम्म। तो बेता और बेतू में क्या फर्क है, इसमें मैं का मीनिंग आ रहा है, इसमें तुम का मीनिंग आ रहा है, वो भी मुजक्कर के लिए बेती होगा। तो ये गलती भी नहीं आइंदा होनी चाहिए। अरूबा, वेर आर यू? जी मिस। हर बंदे की एक स्टोरी मिल जाता है, मैं आपकी भी स्टोरी सुनूं, लेकिन टाइम ही नहीं होता। आप कैसे आई, किस कैसे पता लगा पढ़ना है, ये करना है, क्योंकि हर बंदा तो नहीं आता ना, बहुत सारे लोग हैं जो जी। बाहर बैठे हैं क्लासरूम के। भी समानियती हो गया। समानिया क्या है? 8,000, ये गाड़ी जो बिकी है ना, ये 8,000 में बिकी है। ठीक है। 8,000 है यार। सामान्य क्या होता है? 8 ही होता है ना, मुअन्नस आ रहा है। समानी भी होता है ना, मुजक्कर भी होता है। अरबी गिनती जो होती है वो मुजक्कर में भी होती है और मुअन्नस में भी होती है। ठीक है। समानियुन और समानियतुन मुअन्नस है। अब मुअन्नस क्यों आया? क्योंकि ये मुजक्कर आ रहा है। नहीं, ये वाला मुजक्कर मिस नहीं, ये भी सजा मुजक्कर ही है, लेकिन ये भी मुजक्कर आ रहा है ना, सजारत। ये भी अच्छा। मुजक्कर है ना। जी। तो ये अगर ये वाले मुजक्कर आ जाए बाद वाले मुजाफ इलैह, तो ये वाला मुअन्नस होता है ना, इस तरीके से होता है। तो
ہمیشہ آپ کا جو ہم عدد ہوگا نا یا تو مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا، لیکن اس کو دیکھ کے آئے گا. اگر یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث ہوگا، اور اگر یہ والا جو ہے مؤنث ہے تو یہ مذکر ہوگا، سمانی ہوگا. پھر یہ مرکب اضافی، یہ 3 سے 10 تک کی گنتی کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ نے کہنا ہے 3 قلم، تو کیسے کہیں گے 3 قلم؟ یہ قلم تو مذکر ہوتے ہیں نا. سلاستو یا سلاسو؟ سلاست اقلام، ہاں، سلاستو کیوں لگایا آپ نے؟ کیونکہ اقلام یہ ہے نا مذکر ہے. جی اور یہ مضاف الیہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ والا مضاف اور یہ مضاف الیہ. 3 سے 10 تک گنتی اسی طرح ہوتی ہے. جی اگر ابھی میں کہہ دوں 3 واچز ہے نا، ساعتن جی ہوتا ہے نا واچ. جی جی صحیح ہے، گاڑیاں بھی کر سکتے ہیں. 3 گاڑیاں، تو آپ کیا جی کریں گے؟ جی سلاسو سیارات. سلاسو سلاسو سیارات سیارات. سیاراتن، جی سیارات. گاڑیاں جمع لانی ہے یہاں، گاڑیاں. جی اور جی یہاں عدد سیارات. لانا ہے. اگر یہاں پہ آپ کی گاڑیاں مؤنث ہے تو یہاں پہ سلاسو آئے گا. جی بالکل. سلاستی نہیں آئے گا، سلاستی تو آئے گا اگر بی لگائیں تو بی سلاستی آئے گا. یہاں پہ سلاستو ہی آتا ہے ہمیشہ. جب حرف جر آئے گا تو پھر سلاستی بھی ہو جائے گا نا. تو یہاں پر بی آیا ہے، اس وجہ سے آپ کا سمانیتی آیا. اور یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے زیر آ رہی ہے. اور ایک زیر کیوں آ رہی ہے، 2 کیوں نہیں آئی؟ اس کے نیچے 2 آ گئی ہیں. تو اس کے نیچے ایک زیر کیوں آئی ہے، کون بتائے گا؟ یہ بتایا ڈبل تھا مضاف مضاف بن رہا ہے. ہے ہاں نا، ڈبل ہاں، رول کر رہا کیونکہ ہے. اس کو ڈبل رول کر رہا ہے. جی اگر یہ مضاف بھی بن رہا ہے نا اس کے لیے، تو اگر یہ صرف مضاف الیہ بنانا ہوتا تب تو ہم 2 زیر لگا دیتے. لیکن چونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے، رام اور شام دونوں کا رول کر رہا ہے، تو پھر اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے، ایک حرکت دیں گے. اس کو بھی تو ایک ہی حرکت دی تھی، اس نے بھی رام اور شام کا رول کیا تھا. تو جو بھی ڈبل رول کرے گا مووی میں، اس کو ایک زیر دیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. آشا، آشا کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ مضارع بنا کے دیکھیں. آشا مضارع کیا بنے این گا؟ یا شی. این یا شی. ہاں، یا ایشو. یا یا عائشہ ایشو. یا ایشو. عائشہ جو نام بنتا ہے نا وہ اسی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حضرت عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ کسی کو ہمیرا. نہیں، ایشو. ایشو ایشو. اب ایشو ہے یا کوئی اور ہے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن وہ نام سے عائشہ کبھی پیار بھی سے نہیں کہتے کہتے تھے. ہاں، ہیں. پتہ نہیں کیا، مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح. میں آپ لوگوں سے کنفرم کرنا چاہ رہی تھی، چیزیں مجھے بھول جاتی ہیں تھوڑی. میم لیکن عائشہ کا میننگ کیا ہے؟ آشا کا میننگ ہوتا ہے لیوڈ، ماضی ہے نا، جی یعنی رہنے زندگی گزاری. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام آ گیا، میں نے نہیں دیکھا تھا پہلے. تو لیوڈ ہے. نبی کون رہا، کس نے زندگی گزاری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہاں پہ گزاری؟ بمکہ مکہ وبالمدینۃ المنورۃ. وبالمدینۃ المنورۃ. منورہ نور سے بنا ہے. روٹ ورڈ دیکھا کریں، نون واو را. منورہ نام بھی رکھتے ہیں نا، منورہ، منور، منور نام رکھتے ہیں نا. اللہ تعالی منور ہے، نور دینے والے، نور عطا کرنے والے، ہدایت کا نور. منور، ہر چیز کو نور اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں. یہ جو آپ کو سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، ہر چیز میں نور نظر آتا ہے نا، ایمان کا نور ہو، وہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کا نور. ہماری روح جو ہے نا وہ بھی رب کی طرف سے ہے نا، وہ نورانی ہوتی ہے، فرشتے نورانی ہوتے ہیں. اور اپنے نور کو بڑھانا چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. صبح شام کی دعا میں اللہ تعالیٰ ہمارا نور پورا کر دے. اور دعائے نور بھی ہے نا، وہ تو آپ لوگوں کو یاد ہو ہی تھی. دعائے نور بہت سب، لمبی ہے ویسے. ہاں لمبی ہے، لیکن میں کس دن گرامر کے ذریعے اس کو کریں نا تو بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے.
बहुत मिलते जुलते जुमले हैं, 2 ही जुमले हैं उसमें جی میں बेसिकली. فوقی نوروں سمعی نوروں हाँ مامی نوروں والی تحتی نا. نورا، سارے مرکب اضافی بن رہے ہیں. جی ظرف مداخل ہے تو فوقا. سورت نور کی بات کر رہی ہیں استاذہ؟ نہیں نہیں، دعائے دعائیں نور جو ہے نا، اللہ مبارک کیا ہے وہ، شروع کیسے ہوتی ہے؟ میں اللہم نے نہیں اجعل پڑھی. فی قلبی نورا ہاں فی سمعی نورا، اس کو دعائے نور کہتے ہیں نا. فی بصری نورا وفی ہم، لسانی نورا ہم. ہر وفی چیز میں عینی نور بھر دے، نورا. ہر چیز میں نور. جی پتہ ہے سب سے بیسٹ دعا کون سی ہے؟ اللہم. ربی لما انزلت علی من خیر فقیر. نہیں نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے. شاید ربنا آتنا فی نہیں نہیں، الدنیا وہ بھی اچھی ہے، اللهم لیکن إني نبی أسألك نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الأقوال. فرمایا تھا سب سے بیسٹ دعا ہے عافیت کی دعا. جی جی جی. آپ کے کام، ہم کہتے ہیں ہمارے کام سنوار دیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے عافیت کے ساتھ. عافیت بہت ضروری ہے. اللہم آفینی فی بدنی، اللہم آفینی فی سامی. آفینی اللہ، فی سمعی، اللہم ہاں اسی آفینی فی طرح اللہم بصری. انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ والی بیسٹ دعا ہے. اللہم، اس میں بھی معافت وہی آ رہی ہے. جی 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 جی. تو اف کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زائد. قل الاف، اللہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری راہ میں کیا خرچ کریں، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ قل الاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو جو بھی اس کی ضرورت سے زائد ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر. ہیں سب، اگر 2 چیزیں ہیں نا آپ کے پاس تو ایک دے دیں اللہ کی راہ میں، ایک کو رکھیں، دوسرے کے لیے اللہ پہ توکل کریں، وہ دے دے گا بعد میں. دوسری دے دیں دوسرے کو. 2 جوڑے جوتے ہیں تو کبھی ہمارے ریک بھرے ہوتے ہیں نا جوتوں سے، یہ سردیوں والے ہیں، گرمیوں والے ہیں، یہ پارٹیز والے ہیں. میں اپنے میچنگ بچوں کو والی. بھی یہ کہ میں اتنی تنگ آتی ہوں نا کبھی کبھی ان کے شوز سے، میں کہتی ہوں ایک جوڑا رکھو اور اچھا رکھو. میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو دیکھا، ان سے میں نے سیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ جاگرز پہنتی ہیں، اور وہ ابائے کے نیچے جاگرز ہوتے ہیں، اور ہر جگہ وہ وہی پہن، ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ میں واک میں بھی وہی پہن کے، سب جب ٹوٹتے ہیں تو پھر ایک اور لے لیتی ہے. ہماری طرح چیزیں جمع نہیں کرتی، اپنے وہ مصیبت نہیں بناتی. بچوں کو بھی 1 سال میں ایک جوڑا اچھا بیسٹ والا لیتے ہیں، تھوڑے پیسے زیادہ لگا کے. ہم لیتے ہیں دوسرے دن وہ نیچے سے 2 ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جو سول جی ہوتے ہیں نا یہ تو بعض ہے. دفعہ کڑک جاتے ہیں. تو ایک جوڑا جوتوں کا رکھیں، اچھا رکھیں. صحیح ہے نا؟ گرمیوں کے لیے چپل لے لیں، آپ کی تو گرمی بھی بہت ہوتی ہے نا. شلوار قمیض کے لیے چپل لے لیں اور ویسے لے لیں. بس اس سے زیادہ نہیں، دنیا اتنی رکھیں جتنی مصیبت نہ ڈالیں اپنے اوپر، اور باقی چیزوں میں دھیان اس لگائیں. فضول میں میچنگوں میں پھنس کے اس کے ساتھ یہ میچنگ اس کے ساتھ وہ میچنگ بھرتے رہتے ہیں، رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. او مائی گاڈ، میچنگ لیسز اور میچنگ یہ اور میچنگ یہ اور میچنگ یہ کرتے کرتے نا. اچھا، عائشہ کا مطلب ہے lived. عائشہ، یہاں پہ عائشہ کی بات نہیں ہو رہی، صحیح ہے؟ زندگی گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فعل ہے، ماضی ہے، عائشہ عین یاشین سے بنا ہوا ہے. اور وہ جو عائشہ ہے نا وہ آپ کا فائلن کے وزن پہ، جب آپ یہ روٹ ورڈ ڈالیں گے نا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، فائلن کے وزن پہ جب آپ یہ روٹ ڈالیں گے عین پیاش، تو کیا بنے گا؟ عائش عائشن. ایشن. آیشن پہلے بنے گا نا، جی. الف کی الف نہیں. آیشن بنے گا. تو جب مڈل میں آپ کا حرف علت آ جاتا ہے، زیر کے ساتھ آئے، تو اس کو حمزہ میں چینج کر دیتے. تو اچھا. آئشن بن گیا، اور پھر گول تایا مونس کے لیے لگائی تو عائشہ تن بن گیا. اس میں تو یا آ رہی ہے نا، یہاں پہ دیکھیں الف آ رہا ہے، یا آ رہی ہے. وہاں پر حمزہ میں کیسے، جو اسم الفائل ہے نا، عائشہ زندگی گزارنے والی، زندگی گزارنے والا، اور اگر عائشن کہتے ہیں تو زندگی گزارنے والا. ہمارا عیش کا لفظ بھی تو اسی سے بنا ہے نا، عیش، عیش و عشرت. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح سے بنتا ہے عائشن. جیسے سین اور سوال کا کیا روٹ ورڈ ہوتا ہے؟ سوال، سین سین حمزہ سین لام. حمزہ لام. سین حمزہ لام. اب اس کو فائلن کے سألا. وزن پہ ڈالیں تو کیا بنے گا؟ سائلن بن جاتا ہے نا.
हाँ जी تو یہ تو حمزہ تھا نا، اس کو تو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پہ اگر حرف علت آ جائے تو اس کو حمزہ میں پھر ضرور بدلی کرتے ہیں، واو جی آ جائے یا یا آ جائے، جیسے سعد قاویلن. اب اس قاویلن کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو حمزہ میں چینج کریں گے تو حمزہ قائل قائلن. قائلن. قالا، کالا فعل ماضی ہے اور یہ اس کا اسم الفاعل ہے کیونکہ فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے. کہا ایک کہنے والے نے، قرآن مجید میں آپ کو یہ بہت قائلن ملے گا، جب نام نہیں بتانا ہوتا نا تو پھر قائلن لگاتے ہیں، اور یہ قابلن سے بنا ہوا ہے. یہ چیزیں آپ کو یاد کرنے میں بہت ہے، اس میں ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ آپ کا یہ بور یا نہیں تھا، تو آپ نے اس کو سائلن ایسے ہی بنا دیا. ٹھیک ہے، اس کو ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اور یا قابلن تو نہیں پڑھیں گے نا، قائلن پڑھیں گے. اسی طرح یا ہوگی تو پھر کیا پڑھیں گے؟ جیسے آئیشن، آئیشن، تو اب کیا ہوگا؟ اس کو آپ نے سوری عائش. شن نہیں کریں گے، اس کو زبر دیں گے کیونکہ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہاں اسم الفاعل بنا رہے ہیں، فاعل ان کے وزن پہ تو پیش آئے گی. اب اس یا کو جب آپ حمزہ میں چیز عائشن بن جائے گا، اور پھر آپ گولتا لگائیں گے تو عائشہ بن جائے گا. صحیح ہے نا؟ اب یہاں پہ بھی سائلہ تن لگا لیں، قائلہ تن لگا لیں، یہاں پہ کالت آ جائے گا، کالت قائلتن ہو جائے گا. فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے، فعل کے بعد فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے. صحیح ہے، تو فعل جی کیا آئے گا؟ واحد آئے گا. اندر واحد. ضمیر تو نہیں آ رہی نا، فاعل ہے نا، باہر آ رہی ہے نا، فاعل باہر آ رہا ہے نا. جی قائلن جو میں نے اندر فاعل والے کو کنسیڈر نہیں کریں گے نا کیونکہ باہر اس آ کو گیا ہے اس ہاں میں. اس کو نہیں کریں گے کیونکہ باہر آ گیا نا فاعل. جی تو کلو فاعل مرفوع، تو اس کو بھی آپ نے کیا رکھنا ہے؟ قائلن نہیں رکھنا ہے. اگر الف لام لگاتے تو القائلو ہو جائے گا. اچھا تو انا ما جیتا، پھر جیتا آ گیا، ٹھیک ہے. انا ما جیتو بالکتابی الیوم یا استاذو. اب یہاں بی آ گیا، اب میننگ چینج ہوگا جا آ کا. پہلے میننگ کیا تھا؟ آئے، ہے نا؟ تم کب جی آئے. آنا. اب کیا آئے گا؟ انا میں نہیں، ماضی پہ لا. نفی کے لیے آتا ہے ما، نہیں لایا، لانے کا معنی ہو گیا. جب بی دیکھے نا آگے، جا کے بعد بی بھی آ رہا ہے. جا آپ کوئی بھی سیگا ہو، جا آ کا روٹ ورڈ جیم یا حمزہ ہونا چاہیے، تو آگے بی آ جائے تو اس کا مطلب پھر لانا ہو جاتا ہے. میں نہیں لایا کتاب، اب اس کا آپ کا ترجمہ نہیں کریں گے اس کا، ٹھیک ہے. کتاب کو، ساتھ کتاب کے. اگر آپ آیا ترجمہ کریں تو پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ میں نہیں آیا ساتھ کتاب کے آج یا استاذو. تو کیا مطلب ہوا؟ میں نہیں لایا میں کتاب. آج کتاب نہیں میں لایا. کتاب بھول آیا گھر پہ. ہاں تو جب بی آ جاتا ہے تو لانے کا معنی ہو جاتا ہے. اسی طرح جی ایک اور فعل کون سا ہوتا ہے جس میں بی آتا ہے تو لانے کا معنی ہو جاتا ہے؟ بہت سے ایسے فعل ہیں لیکن ابھی میں میں ایک. ذہبا، ذہبا کے ساتھ ہاں بھی آتا ہے. ذہبہ بی. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے، ویری گڈ، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا. ذہبہ بی کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. ٹھیک ہے. اسی طرح عطا ہوتا ہے، عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ہے نا، آنا. جب بھی لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا لانا. عطا بھی لانا، لاؤ، ہے نا، لانا. ایتی بھی کتابی، لاؤ میں بھی لگے گا نا تو لانے کا معنی ہو جائے گا. ایتی بھی کتابی، آؤ میرے پاس اپنی کتاب کے ساتھ، میرے پاس اپنی کتاب لاؤ. مزہ آتا ہے نا پڑھنے میں اگر سمجھ آ رہا ہو بہت. تو. ہم؟ جی کتنے نقطے ہیں. اب یہاں جب آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ بی کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ لانا ترجمہ کر لیں گے نا خود ہی. انشاءاللہ. ہم۔ اور بغیر اس کے آئے گے تو آنا ترجمہ کریں گے، اذا جاء نصر اللہ. اب وہاں پر جا تو ماضی ہے لیکن مضارع فیوچر میں ترجمہ ہو رہا ہے کیونکہ اذا پھر شرط لگ گئی ہے. جب تم میرے گھر آؤ گے، ہے نا، جب فتح آ جائے،
तो ये तो नहीं कहेंगे ना फतह आ गई, है ना। तो इज़ा शर्त वाला, जब कोई भी हर्फ शर्त वाला लगेगा चाहे इन लग जाए, तर्जमा फ्यूचर में होगा। अगर तुम मेरे घर आओगे, ठीक है, तो फ्यूचर वाला मुजारे का नहीं करेंगे, हाल का नहीं करेंगे, फ्यूचर का करेंगे, माजी का भी नहीं करेंगे, चाहे फिर माजी क्यों ना आ रहा हो। इसकी मिसाल देखें ना, इज़ा जा, अब यहाँ पे बी नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या होगा, आना। जब आ जाएगी फतह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। हाँ, वल फतह, अल्लाह की मदद आ जाएगी। आ गई नहीं तर्जुमा करेंगे, ठीक है। आ गई, आ जाएगी, यानी इन करीब खुशखबरी दी जा रही है ना, कि आने वाली है, बस मक्का फतह होने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे लाने का मानी हो गया सिरना। अब सिरना कौन सा सीगा है, सीन 11 से सिरना 14, 14। ठीक है ना। अब इसको आपने मफूल नहीं बनाना क्योंकि इससे पहले सुकून आ रहा है, इसको फाइल बनाना है। इसको मरफू मुत्तसिल जमीर कहना है। इससे पहले भी सुकून आ रहा है, इसको भी आपने मरफू मुत्तसिल मरफू कहना मुत्तसिल। जी। है। जिस जमीर से पहले सुकून आ जाए उसको मरफू मुत्तसिल कहना है। सिरना, ये क्या है, किलो मित्रैनी, किलो किलोमीटर। मित्रैनी। किलो तो किलो ही होता दो। है, आपको पता है। जी। 2 किलोमीटर, मित्रैनी, है हाँ ना। मुसन्ना आ रहा है। जी। मित्रैनी मुसन्ना आ रहा है। और उसकी कौन सी हालत आ रही है, नस्बी या जरी। नस्बी। उसकी जगह देखेंगे ना, कौन सी जगह। जी। हाँ, बस तो कौन मफरूज सी बन रहे हैं जगह, ना तो नस्बी। मफूल बन रहा है ना, मफूल बन रहा है। जी। मंसूब आने की वजह है ना, ठीक है। जी। तो ये क्या है, मंसूब आने की जगह वो है। तो इस मफूल बन रहा है, इस फेल का, फेल और फाइल हमता है, तो ये मफूल बन रहा है, तो ये मंसूब ही होगा ना। मीटर क्या होता है। बस सरना का आपने बताया था ना मतलब। हाँ, भूल गई। मीटर, मीटर है ना, मीटर जो उर्दू में मीटर कहते हैं, दो बस किलोमीटर सरना सरना। हाँ। अब ये जो है डिस्टेंस। ना, ये जर्फ होता है, ठीक है, डिस्टेंस। जर्फ होता है। मीटर्स क्या है, जगह है ना, जगह है ना। जैसे यौमा, यौमा क्या है, ये भी जर्फ है, लेकिन ये टाइम है, और ये जगह है, मीटर है। तो अब अगर उससे पहले एक ऐसा लफ्ज आ जाए जो कि आपका जर्फ नहीं है, और जर्फ बाद में आ रहा है, तो फिर इसको मैंने पढ़ाया, इसको क्या कहते हैं फिर, इस ये भी, नाबा अब ये भी अनिजर। मंसूब होगा नाबा ना। रिजर्व। हाँ, नाबा अनिज जर्फ, यानी उसकी नियाबत कर रहा है, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अगर ये अकेले आता तो ये खुद मफूलन फी ही बनता, लेकिन अभी क्या है, ये मफूलन फी ही बन रहा है। यहाँ पे मफूल दूसरा वाला नहीं आ रहा है, यहाँ पे मफूलन फी ही आ रहा है, क्योंकि ये जर्फ है। और ये तो जर्फ नहीं है ना, लेकिन ये उसकी जगह ले रहा है जर्फ की। तो पहले ये मंसूब हुआ है, फिर ये मंसूब हुआ है, ये भी मंसूब है, मरफू हो ही नहीं सकता ये। बस किलोमीटर तो पूरा एक वर्ड है ना। हाँ, पूरा एक वर्ड है ना, ले, वर्ड क्या ले, नहीं, किलो अलग है, मीटर अलग है, दो चीजें, मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है, लेकिन ये नस्बी हालत में है। मुजाफ मुजाफ इलैह बन के, क्योंकि जर्फ है ना, ये नाबा अनिस जर्फ है, नाबा अनिस जर्फ पे जबर आती है, तो यहाँ पे तो जबर नहीं आ सकती ना अभी, किलो पे तो नहीं आ सकती ना। तो हमने इसको नहीं लगाई, लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये मंसूब है। अब ये दोनों आते जो है मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आते हैं, ये मंसूब होता है और ये मजरूर है, ये मजरूर है यहाँ पे। जैसे कुल्ला, मैं चला, सिर तू, या सफर किया मैंने, सफरा, सफरा कुल्ला यौमिन। अब इस मिसाल को याद रखें, ये नहीं आएगा, सफरा उसने सफर किया, या सफर तू मैंने सफर किया, कुल्ला यौमिन। अब यौमिन तो मजरूर है जो असल जर्फ है, लेकिन यहाँ पे जबर लगाई है ना मैंने, तो ये आपका क्या बनेगा, नाबा अनिस जर्फ बनेगा, हालांकि ये जर्फ है ही नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी ये जर्फ नहीं है, लेकिन ये मंसूब है, क्योंकि ये मफूल बनाना है। नाबा अनिस जर्फ इज ऑलवेज मंसूब। तो ये मंसूब है और ये मजरूर है, इसको आप मंसूब मत कहें। ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है।
समझ आई है? जैसे यहाँ पे ये और ये मुजाफिल है, तो नाबा अनिस ज़र्फ क्या होते हैं? हमेशा मुजाफ मुजाफिल की शक्ल, मौसूफ सिफ्त की शक्ल में भी आते हैं, मुरक्कब इशारे की शक्ल में भी आते हैं, लेकिन पहला वाला हमेशा जो होता है वो मंसूब होता है क्योंकि वो मफूलन फी ही बन रहा होता है, और दूसरा वाला हमेशा मजरूर होता है क्योंकि वो मजरूर तभी होगा ना जब आपका वो मुजाफ इलैह होगा। सही है? जी, और अगर जाके मैं सिफत घर पे बन रहा है, जाती हूँ। अगर सिफत बन रहा है तो फिर वो जो पहले वाले का इराब होगा मंसूब। अगर इसको सिफत बनाए, मौसूफ बनाए, इसको मौसूफ बनाए, तो फिर ये क्या होगा? उसकी सिफत होगा तो ये भी मंसूब होगा। लेकिन यहाँ पर ये मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है, तो ये मितरैनी मितरैनी जो है मजरूर है क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम तनवीन नहीं आ रही ना, नहीं। तो हम इसको मुजाफ बनाएंगे, इसको मुजाफ। ज्यादातर यही बनते हैं, कुल्ला यौम नस्तईन। आज जा अति तालिबतु क्या है? क्या तर्जुमा होगा? क्या? क्या तालिबात तालिबात आई। हाँ, तो क्या ये असल में क्या था? असल में क्या था? लौटे आई। फाइल इसम जाहिर है, हम्म। ठीक है, तो इसके साथ फेल कौन सा आएगा? पहला सीगा। पहला सीगा, तो ये क्या चौथा था? चौथा आएगा, चौथा चौथा। सीगा क्या था? हुआ। वैसे ता हुआ। साकिन है ना, जात अजा अत जात था। तालिबत। जात अजाअत था। तालिबतु। फेल जब हाँ आता है ना क्योंकि तो मिलाना है इसलिए मजबूर कर दिया ता को। हाँ, जी वरना आपका। अब है कि, देखिए, वरना था तो देखिए ये ता इसम साकिन। जाहिर, एक बात याद रखिए, इसम जाहिर फाइल आएगा तो फेल हमेशा क्या आएगा? वाहिद आएगा। वाहिद हाँ आएगा। पहला या चौथा सीगा आएगा। अगर ये जी मुअन्नस है जी। तो मुअन्नस वाहिद आ जाएगा, मुज़क्कर है। अब इसको देख के आप ये ना गड़बड़ाएं कि इसको भी हम जमा कर दें, ऐसे नहीं करना। अगर फेल इसके बाद आता है ना, यही वाला फेल, तो क्या आएगा? तालिबातू, यही फेल अगर हम जा बाद में ले। जी ना। जी जी ना हो ना, जाएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, जी ना हो जाए। अब इसकी जमीर इसके साथ मुताबिक आ रही है ना, वरना जी जमीर जी जी, ना में। क्योंकि इसमें है ना, अब जुमला इसमें बन गया। हाँ, क्योंकि ये अब जुमला इस्मिया बन गया ना, तो खबर जो है जुमला फेलिया बन के आ रही है, तो उसके अंदर एक जमीर होगी जो मुब्तदा के मुताबिक होगी, दोनों को हाँ कनेक्ट जी। करेगी, हुक डालेगी जी। बीच में। ठीक है ना? जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक हुक होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसी तरह इंजन और डिब्बों में भी हुक होता है। जो स्टूडेंट नहीं लगते साथ, वो बस तमाशा देखने आते हैं, फिर वो उनको कुछ नहीं मिलता, वो जुड़ते नहीं ना। अब जी उस्ताजा ना मैं कबला कलीलिन, अब देखो जी ना आया, तो फेल बाद में आ गया ना, इसम जाहिर फाइल नहीं आ रहा ना, फेल का भी, है ना? जी इसम जाहिर फाइल तो नहीं आ रहा, तो फेल नहीं जो आ रहा। होगा फिर गर्दान में से सीगा उठाएंगे, और जो इसके मुताबिक होगा कि उस जवाब दिया जा रहा है ना, जी जवाब में ये वाला क्यों नहीं आता? इसलिए कि हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि हम जो भी सीगा लगाएंगे उसकी जमीर दर ही जाएगी। अगर अभी यहां पर आप कुछ और लगा देती हैं, जीता लगा, जी तुम लगा देती हैं, तो वो नहीं मैच करेगा। तो जी ना कबला कलीलिन, अब कबला कलीलिन क्या है? ये जर्फ है और ये मुदाफिल है, तो अब ये नाबा अनिस जर्फ नहीं बन रहा यहाँ पे, नाबा नहीं, इन वैसे जर्फ मरकब में। इजाफी। हाँ, ये मुरक्कब इजाफी है, ये जर्फ मुदाफिल है। अब ये क्या बनेगा? जी, जबर आ रही है इस पे, ये क्या बनेगा जुमले में? में ये सब मफूल मफऊल ही बनेगा बनेगा। ना उस्ताद। मफूल मफूलन, बने। कौन सा मफूल? मफूलन फीही। वो पी ही फीही बनेगा, बी ही नहीं कह सकते। फीही टाइम फी। हाँ, और ये फाइल है, ये कौन सी जमीर? फाइल, नून जमीर 12 में नून। से है ना, साथ ही लगी हुई। जी। नून निस्वा। और जीना हमने कैसे बनाया था, वो मैंने आपको बताया था, जीना कैसे जी बनाया था। जी सही है ना? जीम या हमजा तअम्मल। रूट पर था, फालना के वजन पे डाला, जीना बन गया। अच्छा, अब ये है मुजारे, मेरे ख्याल में बस करते हैं, आप लोग भी तंग आ जाएंगे। तो हामिद, इस गर्दान को सिर्फ देख ले। हाँ, अब यब जी ऊ कैसे बना? ये यबी ऊ लिखा हुआ है, ये असल में क्या था? यब जी ऊ। माजी तो हमने बा बना लिया, मैंने आपको सिखा दिया बा कैसे बना है। मुजारे क्या बनेगा? बाप दराबा से यबी उ। यदरिबु। यदरिबू, तो यब ये ऊ जी ऊ, यब उ। यब जी ऊ। अब क्या है?
अब अब इसको पढ़ा नहीं जा रहा जो या है फिर ना आप मुंतकिल कर देंगे मैम? हरफ जो हरफ इल्लत है ना उसके ऊपर जेर है वो पीछे हम करेंगे, पीछे उसको करें, ट्रांसफर कर देंगे। इसको इधर लगा देंगे और ये अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से पहले जी जहरी होती है, वो उसको मिल गई है, वो खुश है, ये अभी वो हो गया, जी है ना। जी काला यकूलू में भी तो यही हुआ था ना, अजवफ वावी में यकवुलू जी बना था, और फिर उसकी हरकत को वाव की पीछे किया था, यकवुलू, तो वो यकूलू बन गया था, उसमें भी जरूरत नहीं। लेकिन कभी कभी एक स्टेप और लेना पड़ता है, जब फिर भी बीमारी दूर ना हो तो एक स्टेप और लेना पड़ता है, हरफे इल्लत जैसे को पिछले वाली हरकत के मुताबिक चेंज करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ा नहीं जैसे जा हमने रहा किया था नामा नहीं खाफा या खूफू किया हाँ था ना उस शायद। हाँ जो भी है, तो वो जब जब आएगा ना, जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद इसके अंदर जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर आते हैं, फिर आप हर रोज क्लास ले रहे हैं, तो यबीऊ बन गया, अब यबीऊना बना ले, इसके आगे वाव लगाएं और इसको नून जबर कर दें, यबीऊना बन गया। जी तबीयू कैसे, जब ये वाला बना लिया था, तबीयू तबीयू तबीईना, इसको छोड़ दें, अभी अबीऊ नबीयू बन गया। ये 5 सीधे जी पेश वाले होते हैं मुजारे में, 5 पेश वाले होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसको नहनु नबीऊना नहीं करना कि ये जमा है तो इसको भी जमा बना दे, ये ऑलरेडी जमा है, नून लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ऑलरेडी ये जमा का सीगा है, ये जमा का नहीं है, ये अना अना जमीर है, मैं, अना ये इसको आपने नहीं करना, नबी ऊ ही करना है। मुजारे की गर्दान लिखा करें, ठीक है ना, आपको सही समझ में आएगी। सारे 14 सीगे लिखे, और उसमें कितने वाले, 5 पेश वाले होते हैं, और पीछे रह गए 9, 9 नूने अराबी वाले होते हैं, 9 जो होते हैं नून वाले होते हैं। पहले तो ये आपने लिखना सोचना है, 2 तरह के सीगे होते हैं, एक तो जो होते हैं कि पेश वाले होते हैं, और एक नून वाले होते हैं। अब जो नून वाले होते हैं ना, उनमें से 7 जो होते हैं वो नूने अराबी वाले होते हैं। नूने अराबी का क्या बाकी दो मतलब है, नून निस्वा। कि उनका नून एराब होता है, उनका नून उनका एराब होता है, यानी दमे के बराबर होता है, इसलिए तो उसको गिराते रहते हैं ना। और 2 सीगे जो होते हैं वो मबनी होते हैं, वो उनका एराब चेंज नहीं होता, सबका नून गिर जाएगा, लेकिन ये 2 सीगों का नहीं गिरेगा, नून निस्वा वाले से। इसके पीछे आप कुछ भी लगाएं, रुपए जाजमा लगाएं, नासबा लगाएं, ये नून गिरेंगे, बाकी 7 ये पेश भी गिरेगी। रुपए जाजमा पे से लगाएंगे तो सुकून आ जाएगा, नासबा में से लगाएं तो जबर आ जाएगा। फिर इसी तरह आपने ये वाली की है ना, अभी आपने इसको खुद करना है, असनिद। असनिद का मतलब होता है कि आपने इसमें सीगे लगाने आगे, यसीरू व यईशु, ये मैंने आपको बताया था, सारा यसीरू बनता है, असल में क्या बनता है, यसीरू। यसीरू फिर जब आप ट्रांसफर करेंगे पीछे हरकत को, तो यसीरू बन जाएगा, जैसे यहाँ पे किया है यबीयू में, बिल्कुल इसी तरह। सीन यार रा इसका रूट वर्ड है, सारा तो मैंने बना दिया था ऊपर, यसीरू यस यीरू बनेगा, लेकिन फिर उसको हम ट्रांसफर करेंगे पीछे हरकत को, तो यसीरू बन जाएगा। इसी तरह ये भी इसी तरह से बनेगा, इसको बनाइएगा, इसमें भी आपका बिल्कुल इसी वजन पे या यू की तरह या यीशु बनेगा। फिर आप हरकत ट्रांसफर करेंगे तो ये बन या यीशु बन, ये हरकत पीछे आई हुई है, ये असल में इसके नीचे थी, तो ये पीछे आई हुई। फिर उसके बाद आपने इसी तरह पढ़ना है, पहले क्या है आपका, यसीरू है ना, हामिदुन यसीरू, अरिजालू क्या आ जाएगा, क्या लगाएंगे, अब सो गए हैं सारे, मैं जा रही हूँ फिर, यसीरू, यसीरून। यसीर ये हूं ना। सीरू ना हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, तो सीरू, यहाँ क्या हो जाएगा, अ, यसीर यसिरना। यसिरना। यसिर ना, यफ हाँ इलना के यसीर। वजन पे डालेंगे ना अभी। बाप कौन से है, दाराबा यदरिबू है ना, जी। तो यफ इलना के वजन पे डालेंगे। हम्म। अब क्या होगा, यफ इलना के वजन पे जब डालेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताएं क्या बनेगा, डालें अपना, यसिरना। बस यस यसिरना। यस। यसिरना। यस इरना बनेगा। यस इरना को करने की जरूरत है आगे, यस, नहीं मिस।
सीन या रा है ना, रूट वर्ड है सीन या रा। मैं अच्छा अभी क्या है, बीच में आई। सीन या रा। अब यहाँ पर क्या है, या यहाँ पे जबर आ गई, और यहाँ पर यफ इल्न है तो फा पे सुकून है, तो हमारा फा कलमा सीन है, तो सीन पे सुकून आ गया। ऐन कलमा या आइन है आएगा तो ना। यस यरना बनेगा पहले। जी। ये या है ना, तो या के नीचे जेर आई, और ये रा है, रा पे सुकून आया, यस यरना बनेगा। यस यरना का जब आप इलाज करेंगे तो फिर यस यरना बनेगा। अब कैसे इलाज करेंगे, पीछे खाली है, या के नीचे मिस जेर है, या जेर को पीछे पीछे उसको अब देंगे। दो सुकून और इकट्ठे हो। जी हाँ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, यसिरना बन तस्दीक। गया आपका, यसिरना बन गया आप ना। जी बस आपका रेडी है यसिरना, बस पीछे आपने जी हरकत की, जैसे आपने यबीयू को बनाया ना वैसे ही बनाना है। जी वहां यबीयू को भी बना के देखिएगा, यहाँ पे इस जगह पे, ये वाला जो, हाँ यहाँ पे है ना, यबे ना कैसे बने, तो यह सिरना है ना, ये भी यसिरना है, यबे ना है ना। तो बस एक ही आपने बस हरकत पीछे की और आपका काम हो गया, तीसरा स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो कभी कभी तीसरा स्टेप भी करना पड़ता है जब पढ़ा नहीं जा रहा होता है, अभी और इलाज की जरूरत होती है, और थोड़े नश्तर चलाने पड़ते हैं, स्पेशल डॉक्टर आता है फिर। अच्छा अंधा तभी यू हो गया, तभी यू तभी ऊना हो जाएगा, तभी ऊना, तभी तभी यू बना लिया तो यसीन। सब बन जाएंगे फिर। जी। तभी ईना, इसको किस वजन पे बनाएंगे, तफ अलीना के वजन पे डालना है। इस पे आप डालेंगे जो भी वजन डालेंगे, तब ये तफ तफ क्या तफ इलना क्या है ये, तफ अलीना है ना, यहाँ पे गलती कर दी, तफ अलीना, तफ सही है अलीना ना के। सब? अब इस पे जी आप डालिएगा अपना रूट वर्ड और इसको बनाइएगा, कैसे करना है, तफ अलीना तब में ता तो ऐसी रहेगी, फा जी में क्या आएगा, बा बा लग, बा हाँ बा लग, साकिन। तफ ऐन की जगह क्या आ जाएगा, या आ जाएगा, या जी जबर या। और आगे मिस तफ लाम की जगह या। और लाम की नहीं। जगह, लाम की जगह ऐन, ऐन हाँ, के लाम की नीचे जगह जेर, आइन। और फिर या और और या नून। की जगह या। और नून जो जबर या। एक्स्ट्रा होते हैं ना वो एक्स्ट्रा ही होते तब हैं, उनको या। वैसे ही लिखना होता है, ठीक है। अब फा ऐन लाम की जगह आपने अपना बा या ऐन डाला है, और हरकत भी वही लगा दी है, फा पे सुकून, या पे जबर, और ऐन के नीचे जेर। तो ये आपका क्या बन गया, तब या ईना। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा ना, इसमें आगे एक और हरकत करना पड़ेगा। अभी तो हम ये हमने वजन पे डाला है, अभी हम पहला स्टेप भी लेने लगे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये या है, और यहाँ पे क्या है, बोझ है हरफ इल्लत पे, और इसको हम पीछे बार है हरफ इल्लत लेटर। तो या फिर आप इसको इस ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हरफ इल्लत ये भी आ रहा है ना, ऐन ऐन कलमे में क्या आ रहा है, या भी आ रहा है ऐन में, बा या ऐन, ऐन तो हरफ इल्लत नहीं होता, सिर्फ नहीं। यही हरफ इल्लत है ना। अच्छा अब जी इसमें आपने क्या करना है, हरफ इल्लत पे बोझ है, पीछे साकिन है, यहाँ जेर देंगे, यहाँ पे ये हो जाए। अब क्या हुआ है हमारे पास, दो हमारे पास सुकून इकट्ठे हो गए ना एक ही लफ्ज, तो आप किसको गिराएंगे, या को गिरा देंगे ना? कमजोर को। अच्छा अभी यहाँ पर आप देखें तो ये आपने कर लिया, ये सुकून आ गया, और दो सुकून है, इसको गिराए, तब ईना बन जाएगा, ये तब ईना, इन्होंने चेंज ही नहीं किया, तब ईना ही रहने दिया क्योंकि वो पढ़ा भी जा रहा है, तब तभी ईना, तब जीना इन्होंने रखा है, वैसे ही रख दिया इन्होंने, क्योंकि उसमें इतना शकल आया नहीं ना पढ़ने में, तो तफ जी अलीना में उन्होंने तब ईना ही रहने दिया। इसको फिर नेक्स्ट वीक हम दोबारा से देख लेंगे, ठीक है, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है इतना, काफी थकी हूँ मैं। सुब्हानक जी अल्लाहुम्मा जी व बिहम्दिक नहीं नशहदु ये अन भी ला ठीक है। इलाहा इल्ला अंत
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा सारे सीरियल बनाने की। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। फी जज़ाकल्लाह अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। खैर, ईमान। कल क्या दिन है, क्या करने हैं कल? कल दे बुध है ना हाँ, मौसा, कल हमारी आपकी क्लास क्लास, होगी। कल तो एडवांस क्लास है, ठीक है। जी ओके, जी फी जी अमानिल्लाह। ये भी एडवांस ही थी जो भी किया हमने, ये भी जी कम नहीं है, ये बुक